first chapter is the learning and working with the community. Okay, so yeah, learning and working with the community. Okay. So, and learning and working with the community means you have to work on the sample, which is a large one. In the previous DNH2 also we were actually discussing the large sample because we were discussing about the epidemiology. Okay, so now also we will be going to discuss with the you can say that with the epidemiology with the community also. Okay, so this is the one with the community, and then in the first chapter which we'll be going to discuss, because is we really wish to know about the community education also, their prerequisite. Obviously if we really wanted to learn about the health, so little bit actually, obviously I don't want to clarify all these, but this is the, just wait, I have to send the link to somebody. Yeah. So we have to learn about the community, so we have to learn. Okay, obviously if you want to learn about the for the community education, and also there would be some limited amount of the, or limited or requirement of the education also, because whenever you talk about the health issues, health education, or healthy health also, even you talk about the mind, soul, blood, and all everything. So altogether, if you say that the wholly illiterate person cannot actually understand all these things. Okay, so the wholly understand, little bit minimum requirement of the education is there, so that you really need to understand about the health, because you have to understand about the health, you have to understand about the biochemical parameters, you have to understand about the healthy mind also, you have to understand about the physical activity also, the importance of the physical activity also, and you have to learn about the prophylactic medicines which can save you uh, from the diseases. Okay, and then we have to learn about the clinical samples also. So if you are little bit the minimum requirement of the education, okay, little bit education, and I don't say that it should be metric or it should be +2 or something, because till the seventh eighth they cannot just understand. Okay, middle standard, primary standard, even they cannot even understand about the uh, you can say that these terms, okay, scientific terms about the epidemiology. If you really wanted to understand about the community health, then you should be a little bit educated, and this is the prerequisite. Okay, and then only then you could be understand about the health, and then only because we are going to discuss about the develop good relation with the people in the community, because you have to socialize also and help the people in the community to organize themselves in order to solve problems also, and cooperate with other community workers also, and information of the community, obviously different sources of the community you should know about the health, about the resources, water resources, grocery resource, another electricity resources, whatever the resources, clothing resources, grocery resources, health, small hospitals, and doctors. Obviously whenever you start living in one of the community, you should know about that community, what are the resources over there, because जब हम घर भी लेते हैं ना, देन ऑल्सो वी लुक फॉर कि यहाँ ये पार्क है, यहाँ ये हॉस्पिटल नजदीक है, यहाँ ये स्कूल नजदीक है, हमारा ऑफिस नजदीक पड़ता है, तो ये सारी चीजें हमारे रिसोर्सेज में ही आती हैं. सो बिकॉज वेवर वी एक्चुअली डिस्कस अबाउट दैट, so we will be going to discuss about the things which are prerequisite for that. So all these things would be required, which we can say that for the community also, if you want to live in the society, and if you want to be healthy, or if you want to communicate. So the communication कहने का मतलब ये है कि communication in the community when you are living, because कि अगर आप, if you're living in some society,
हमें होता है ना फलाना डॉक्टर हमें जानता है, वो हमारा फैमिली डॉक्टर है, या वो हमारी टीचर है, या वो ग्रोसरी स्टोर वाला हमें जानता है। सो आपके एक तो ये कम्युनिटी में रहने का एक फायदा होता है, सो दैट यू हैव सम कम्युनिकेशन with other members of the society, where whatever it would be a sweeper, it would be a garbage picker, also it would be a hawker, दूध वाला होगा, ग्रोसरी वाला होगा, फ्रूट वाला होगा, सब्जी वाला होगा, हेल्थ के भी रिलेटेड होते हैं, आपका ऑफिस भी पास होगा, आपके स्कूल के टीचर्स भी होते हैं, आपका बच्चों को पढ़ाने वाला कोई, मतलब whatever. I'm just talking about the community because we know that we have a relationship. We are not living alone in a society, so we have a relationship. So many relationships, not only with department is also one of the thing, because you know that dispensary persons, वहाँ पे कोई नर्स जानती है, अगर आपको रात बिरात कोई दिक्कत आ जाती है, then you call that nurse to, और कोई डॉक्टर है उसे आप कॉल कर लेते हो. So you, if you have a good relationship ना, तो आपके पास ये सारी, so if you're living in one kind of a community, so you have a communication in that community too with the other people who are living in that particular society or one of the community. ओके ये आपके लिविंग एरिया की हम बात कर रहे हैं कि जब जहाँ पे आप रहते हैं, छोटी कम्युनिटी है, बड़ी कम्युनिटी है, छोटे रिसोर्सेज है, बड़े, बट आफ्टर सम टाइम कई बार ऐसी दिक्कत आती है कि आपको यू हैव टू गो टू द बिग हॉस्पिटल्स आल्सो, एंड समटाइम्स व्हेन यू गो टू दैट हॉस्पिटल देन यू मेक सम रिलेशनशिप्स ओवर देयर आल्सो. सो बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स भी आपको जानते हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्कल है, आप उससे जानते हो, एंड देन वो फर्दर आगे जानता होता है. जैसे कोई दिक्कत आ गई तो आई विल कॉल माय फ्रेंड कि प्लीज आप आगे कहिए, हमें यहाँ जाना है, या कोई दिक्कत आती है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द कम्युनिटी एंड व्हाट इज अ living in community, and what is the meaning of living in one community with the communication of that community members. Okay, so just try to understand about these things. So this whole about this. So what is community? एक ऐसी stable small कम्युनिटी होती है, स्मॉल साइज है, ये कोई हम बड़ी पॉपुलेशंस की बात नहीं कर रहे हैं. एक स्टेबल रहने की जगह है जहाँ पे बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग उस घरों में रहते हैं, ऑटोनॉमस बॉडी है, सेल्फ कंटेन्ड यूनिट है. सेल्फ कंटेन्ड यूनिट में वही आ गया कि यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट भी होगी, जैसे एक सेक्टर हो गया, छोटी सी मार्केट भी है जहाँ पे दूध और ग्रोसरी का सामान मिल जाता है, थोड़े बहुत पंचर वंचर आपकी गाड़ियां होगी वो भी लग जाती की दुकानें भी हैं, आपको सब्जी भी अवेलेबल है वहां पे, आपको स्वीपर भी अवेलेबल हैं, आपको दूध वाला भी अवेलेबल है, छोटी मोटी हेल्थ की रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, छोटा सा पार्क भी है, छोटा मोटा स्कूल भी है जो आपके बच्चों के लिए, हो सकता है बड़ा स्कूल भी हो आपकी कम्युनिटी में. सो ऑल दीज थिंग्स would be actually required in one of these, so that is called the self-contained. Okay, so that's called the self-contained society community in which इसमें क्या होता है कि आप इसको देखोगे कि एक कोई प्रिमिटिव ट्राइब्स हो सकते हैं, विलेजेस हो सकते हैं, या इमिग्रेंट एरियाज भी हो सकते हैं. जैसे अब दिल्ली में अगर आप देखो तो छोटे छोटे एरियाज हैं, अब सॉरी जैसे पार्क हो गया, कोई हो गया, क्या, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे छोटे छोटे रिसोर्सेज, छोटी सी कम्युनिटीज हैं, छोटे छोटे रिसोर्सेज होते हैं, वो सारे हैं. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स वुड बी रिक्वायर्ड. सो यहाँ पे ना ये जो कम्युनिटी है सेल्फ कंटेंट का मतलब ये है कि वो अपने आप में ही सब कुछ है, जहाँ पे कुछ नेचुरल एरियाज भी हैं, कुछ स्पेशली बिल्टअप भी होते हैं, जैसे कोई लेक बनाई हुई है किसी एरिया में, कोई पार्क था, आपने उसको मेंटेन कर लिया, या फिर कुछ भी नहीं था, खाली जगह छोड़ के कम्युनिटी के लोगों ने, उस कम्युनिटी के लोगों ने उसमें घास वास लगा के उसको पार्क क्रिएट कर दिया. कई बार क्या होता है किसी एरिया में पार्क्स खुद होते हैं, आप उसको मेंटेन करते हो, थोड़े बहुत फूल पुत्ते ये वो और सारे हेजेस वगैरह लगा देते हो. समटाइम्स क्या कि कुछ भी नहीं था तो वहां पे कंटेन करते हैं. तो हर तरह क्या है कि मैन मेड हो सकते हैं, कम्युनिटी पर्संस के लिए के द्वारा बनाया गया हो सकता है, एंड देन और ऐसा भी हो सकता है कि पहले से था उसको मेंटेन कर रहे हैं कम्युनिटी के पर्संस, क्योंकि मेंटेनेंस ऑफ एवरीथिंग रिक्वायर्स. ओके, सो कम्प्लेक्सिटी ऑफ द कम्युनिटी को अगर हम देखें तो उसके बाद क्या आता है कि उसके में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जैसे हम अगर लेते हैं कि कुछ ऑक्यूपेशन एक टेरिटोरी एरिया में होगा जहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट होंगे, कॉमन पैटर्न्स होंगे, कॉमन इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स होंगे, सोशल. ठीक है, उससे फिर क्या है कि आपके बॉन्ड्स बनते हैं सोसाइटी में. ठीक है, तो हमें अब मेनली हमें क्या देखना है कि हमें उस कम्युनिटी में देखो 10 आपके छोटे छोटे घर हैं, हो सकता है 50 घरों की एक कम्युनिटी है, हो सकता है 100 घरों की है, थोड़ी बड़ी कम्युनिटी होगी, 100 घर हो सकते हैं, 200 घर हो सकते हैं एक सेक्टर्स में. जैसे अब आई लिव इन चंडीगढ़, तो एक सेक्टर में काफी घर है. ठीक है,
तो उनको भी एक एक पोर्शंस में ए बी सी डी, सपोज एक सेक्टर को, एक सेक्टर को भी 3-4 पोर्शंस में बांटा हुआ है, और वहां पे भी थोड़ी थोड़ी चीजें हैं कि वो उस तरफ क्या चीजें मिलती हैं, इस तरफ क्या चीजें मिलती हैं, उसका एक अलग पार्क होगा, उसका एक अलग पार्क होगा, सेंटर में एक मार्केट है। सो हमें क्या करना है, सबसे जो फोरमोस्ट नीड होती है ना किसी भी कम्युनिटी की, आजकल तो चलो डेवलप्ड है तो ये बातें लगती नहीं है, बट अगर आप कोई भी कम्युनिटी डेवलप करते हो, होती है या आप डेवलप करते हो, या कोई नई जगह बसती है, कोई नया शहर बनता, तो दैट मीन्स कि वो एक नई कम्युनिटी बन रही है। ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले नीड क्या होती है, फूड एंड न्यूट्रिशन। सो अकेली फूड नहीं कि फिलिंग होगी, आपकी क्या बात होती है कि उससे आपको जो फूड आप खा रहे हो, सो दैट वुड बी एक्चुअली रिक्वायरिंग द न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स आल्सो। सो डिफाइन द चीफ डे। सो अब हमने तो फूड वाली बात तो हमने कर ली, क्योंकि अगर कहीं रहना है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट नौकरी, फलाना ढिमकाना, स्कूल, ये वो, पार्क्स, हेल्थ, वो तो बाद में है। खाना तो खाना है, एंड दैट खाना वुड बी एक्चुअली द न्यूट्रिशियस वन। उसके बाद हम आएंगे कि अगली प्रॉब्लम्स कौन सी हैं। सो उसके बाद हमने डिसाइड करनी है अब इस एरिया की चीफ प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, फिर उस प्रॉब्लम को, वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्यों है वहां, अगर उस प्रॉब्लम एरिया की प्रॉब्लम है कोई, तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्यों है। ठीक है, तो वो देखनी है उसकी कॉजेज, फिर डिसाइड करना है कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या डिसाइड किया जाए, और इस सोसाइटी में क्या चेंजेस की जाएं, सो दैट वो प्रॉब्लम को, क्योंकि वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको रिमूव किया जाए। ठीक है, तो उसके कुछ सॉल्यूशंस हैं, जैसे कमेटी बना लो, एक गांव में सरपंच होता है, ऐसे एक लीडर बना लो, उसके आगे 4-5 मेंबर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, फिर वो लोगों से पूछेंगे, अपनी सोसाइटी, अपने इधर छोटे से 10 घरों से वो ला रहा है डेटा, 10 घरों से ये ला रहा है, 10 घरों से ये, 10 घरों से ऐसे, तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली लोगों की प्रॉब्लम क्या है, और इस प्रॉब्लम उसको उसको एक्चुअली प्रॉब्लम लोग क्या फेस कर रहे हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव जो 10-20 बंदे होंगे, या 15 होंगे, या 10 हैं, या 5 हैं, वट एवर, तो they'll sit together and they'll discuss in the favor of that persons of that community. Okay, जो लोग वहां की कम्युनिटी में रह रहे हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो उन लोगों की प्रॉब्लम को सुन के then they'll sit, because they are the representative of those that community, then they can sit and then they can think, and then फिर वो उसको डिसाइड कर सकते हैं, सुन के फिर सोच सकते हैं, अरे ये इसका प्रॉब्लम ऐसे हो सकता है, पैसे इकट्ठे करने हैं, फिर वो कोई बना सकते हैं रूल के जी सबसे इतने इतने लेके, फिर ये इसका सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर दे कैन एक्चुअली फर्दर गो टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, उस एरिया के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनसे ऊपर ऊपर ऊपर, फिर मतलब जैसे भी। ओके, सो दिस इज द सिचुएशन जिसको हम डिसाइड करेंगे। तो क्या होगा, उनको बैठ के एक्चुअली करना क्या होता है, दे हैव टू डिसाइड वन सोल्यूशन। ये नहीं है कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, ऐसे। डिस्कशन का मतलब ये है कि जब रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, उन्होंने प्रॉब्लम डिस्कस की, तो उसमें से कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, उसको लेके ना आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है, सो दैट द हर बंदा उस पर एग्री करे, हर बंदे के पॉइंट्स उसमें ले लो, सो दैट वन सोल्यूशन शुड बी देयर। फिर उस सोल्यूशन के अकॉर्डिंगली यू हैव टू डेवलप द प्लान कि अब करना कैसे। अच्छा, ये वाली प्रॉब्लम, पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ठीक है, सो उसके बाद फिर प्लान ऑफ एक्शन आ जाएगा, फिर उस प्लान ऑफ एक्शन पे वर्क करना है, कैरी आउट करना है। फिर हमें जब एक बार करेंगे, फिर देखेंगे कि अच्छा, ये पहले प्रॉब्लम 100% थी, अब कितनी रह गई है, 80% रह गई, अब इसको कैसे कम किया जाए। फिर आप फिर से वर्क करोगे, फिर से प्लान बनाओगे, फिर से वर्क करना शुरू करोगे उस सोसाइटी पे, उसी प्रॉब्लम पे, एंड देन हो सकता है पहले 80% थी हुई, अब हो सकता है आपकी 20% और निकल जाए। जब 20% और चली जाएगी, एंड देन 20% पहले गई थी 80, अब उसका भी 20% चली जाएगी, फिर उसका भी 20%। सो ऐसे ऐसे करते करते ना, स्लोली स्लोली, ये एक दिन का काम नहीं होता है कि एक दिन में, आई मीन यू कैन से कि एक दिन में ऐसी सी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स, खासकर क्योंकि ये एक पर्सन की प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एक घर की प्रॉब्लम्स नहीं है, एक सोसाइटी की है, जो बहुत लोगों की प्रॉब्लम है, और बहुत लोगों के डिफरेंट डिफरेंट डिमांड्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो हर प्रॉब्लम को हर बंदा डिफरेंट तरीके से देख रहा है। एक फैमिली के लिए वो वही प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम उस फैमिली के लिए किसी और तरीके की है। ठीक है, एंड वही प्रॉब्लम किसी दूसरी फैमिली के लिए डिफरेंट है, किसी के लिए वो 100% प्रॉब्लम है, कईयों के लिए वो 50% ही लगती है कि नहीं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। कोई कह रहे हैं कि 10% ही है हमारे लिए, कोई, मतलब यू कैन से दैट द सेम प्रॉब्लम वुड बी identified with a different potency for every family living in the same
चल जाएगा, किसी का सोल्यूशन ज्यादा देना पड़ेगा. सो यू हैव टू थिंक, सिट, डिस्कस एंड देन फिर प्लान करके फिर एक मुद्दे पे आना, सबको एक ही स्ट्रैटेजी बनानी है. ठीक है. तो हो सकता है आपको किसी एक फैमिली के लिए ज्यादा स्ट्रैटेजीज बनानी पड़े कि नहीं उनको ज्यादा है इनको कम है, तो ऑब्वियसली हमें प्रॉब्लम इरेडिकेट करनी है. वी आर नॉट बायस्ड फॉर एवरीवन. ओके. सो इफ यू आर एक्चुअली बायस्ड फॉर एवरीवन, सो होगा नहीं कि आप उसको सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है. सो सो दैट्स व्हाट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक सॉल्यूशन पे आना बहुत जरूरी है. ठीक है. और अब क्या है, वर्किंग विद द कम्युनिटी. अच्छा, एक कम्युनिटी में कैसे काम करेंगे, वर्किंग विद इंडिविजुअल्स. ऑब्वियसली पहले एक रिप्रेजेंटेटिव से बनेंगे और दे हैव टू गो टू द इंडिविजुअल्स. सबसे पहले कम्युनिटी वर्कर्स टॉकिंग टू दी. अब कम्युनिटी वर्कर्स कौन से होते हैं, ऐसी वही कहा ना मैंने कि जो कम्युनिटी वर्कर्स होते हैं ना वो हमारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं उस कम्युनिटी के. तो उस कम्युनिटी में जब वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं तो फिर वो उसके रिप्रेजेंटेटिव बन के वो लोगों के पास जाते हैं. उस मतलब एक कम्युनिटी में एक रिप्रेजेंटेटिव्स की एक है, आई मीन एक एक ग्रुप बन गया. ठीक है. एक कमेटी बन गई है, एक ग्रुप बन गई है, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है जिसमें एक लीडर है, उसके आगे 4 लीडर हैं, उसके आगे और 10 लीडर्स हैं, और उन 10 लीडर्स के आगे भी कम्युनिटी के वर्कर्स हैं जो घरों से इंफॉर्मेशन लाके देते हैं. सो दे आर द कम्युनिटी वर्कर्स, और जो कि काम करते हैं कम्युनिटी के लिए. और व्हेन दे विल स्टार्ट वर्किंग विद दैट कम्युनिटी, सो जो सबसे नीचे वाले होंगे ना, देन वो क्या करेंगे, उसके पास कम्युनिटी में इंडिविजुअल लोगों के पास जाएंगे. दे विल गैदर दी. क्योंकि पहले वो ऐसे एकदम से जाने का भी फायदा नहीं. पहले आप उतनी सोसाइटी में ना आइडेंटिफाई भी कर लेंगे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, एक्चुअली चलती हैं और चल रही हैं. तो आप उनको देखेंगे और आइडेंटिफाई करके फिर आप सोचेंगे कि अब इन पे लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कितनी पोटेंशियल की है और कैसे होगा और कैसे नहीं होगा. सो वेन एवर यूल स्टार्ट आस्किंग, तो आपके पास डिफरेंट, क्योंकि आप डिफरेंट तरीके से सोच रहे से, एंड देन दे विल स्टार्ट thinking with the different patterns. Okay, when you'll go to the I mean the vegetable vendors, उसके लिए वही प्रॉब्लम किसी डिफरेंट तरीके की होगी, वो किसी और तरीके से सोचेगा. एंड देन एक जो थोड़ी पढ़ी लिखी मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए, एवरेज क्लास फैमिली है उसके लिए, हाई क्लास फैमिली, बिकॉज एवरी कम्युनिटी is having a different financial levels, different education levels, different family levels के होते ही हैं, उनके अपने लिंक्स भी होते हैं. तो कुछ प्रॉब्लम्स तो फैमिलीज अपने लेवल पे सॉल्व करती हैं, तो वो प्रॉब्लम उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है जो बाकियों के लिए ज्यादा होती है, ऑब्वियसली जो नहीं सॉल्व कर पाते हैं. ठीक है. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो वर्कर्स वहां पे जाएंगे तो उनको डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन, देन फिर आपकी ग्रुपिज्म हो सकती है कि यस, इस कम्युनिटी के लिए ये वाली प्रॉब्लम है, वेंडर्स के लिए ये प्रॉब्लम है, हाई क्लास के लिए ये प्रॉब्लम है, इसके लिए ये प्रॉब्लम है और इसके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है. सो आपको क्लासिफाई कर लेना है कि अब आपको ये वाली प्रॉब्लम इन लोगों के लिए सॉल्व करनी है, ऊपर वालों के लिए नहीं सॉल्व करनी है, या हाई क्लास के लिए नहीं करनी है, या मिडिल क्लास के लिए नहीं करनी है. सो आपको बिलो पॉवर्टी लाइन या वेंडर्स के लिए, या बिलो पॉवर्टी लाइन या अनप्रिविलेज लोगों के लिए इस कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी तो सॉल्व करनी है ना. सो यू विल बी लाइक टेलिंग दोज पर्संस के ठीक है, अब अपनी प्रॉब्लम बताओ, तो आप उनका सुन के आके उनके लिए सॉल्व करेंगे. उनका अलग से क्वेश्चनर होगा, उसको अलग से आप पूछ के उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि उनकी प्रॉब्लम की पोटेंसी कितनी है. सो यू हैव टू थिंक अबाउट दैट. वर्कर्स के पास जाके, ठीक है, वो जो कम्युनिटी वर्कर्स होंगे ना, देन दे विल बी लाइक गिविंग. और इसी तरह से क्या होगा कि एक जगह से सुन के फिर अगले जाएंगे. अच्छा, उन्होंने क्या करना है, आपने अगर किसी रिसोर्सेज की वजह से, एक्सपेंसेस की वजह से है, किसी फैमिली मेंबर की वजह से है, कोई प्लांट प्रोजेक्ट है, या किसी में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सोसाइटी में कई कुछ होता है ना, कन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होते हैं कि ठीक है, एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ आइडियाज भी होते हैं, डिफरेंटली सोचते हैं लोग, क्योंकि एक सोसाइटी में देखो, एक फैमिली में भी लोग एक तरह से नहीं सोचते हैं. तो आप कम्युनिटी का तो बिल्कुल ही नहीं सोच सकते हो कि वो एक जैसे से लोग होंगे. ठीक है. तो whenever the different persons they are living in the society and then they'll start living together, then they'll having a different kind of a problems, सेम प्रॉब्लम डिफरेंट पोटेंसी की होगी, सब कुछ होगा. एंड देन विल बी गोइंग टू डिस्कस, द कम्युनिटी वर्कर्स दे विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोस. एंड देन फिर वो आइडेंटिफाई करेंगे कि यस, इनकी ये प्रॉब्लम है, हो सकता है वो फाइनेंसिस की हो, रिसोर्सेज की हो, कुछ भी हो, जिसको ज्यादा जरूरत है उसमें इक्वली डिवाइड, अनइक्वली भी डिवाइड करने पड़ सकते हैं.
देखो अब किसी के पास एक रिसोर्स बहुत ज्यादा है और कम्युनिटी में एक रिसोर्स है, इनके पास ऑलरेडी रिसोर्स है, दे आर ऑल्सो यूजिंग दिस रिसोर्स एंड दे आर ऑल्सो यूजिंग दिस रिसोर्स एंड दे आर ऑल्सो यूजिंग दिस रिसोर्स। सो समटाइम्स होता क्या है कि जो बहुत कम वाले हैं उनको इस रिसोर्स की ज्यादा जरूरत थी और एक हाई क्लास थे उनको उस रिसोर्स की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, तो उसको दे के वेस्ट करने की बजाय इस वाले रिसोर्स को ही उसको दिया जाए जो ज्यादा नीडी है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है और आप आइडेंटिफाई करके इंडिविजुअली आपको लेना पड़ता है और ये कम्युनिटी वर्कर्स के जो लीडर्स होते हैं उनको ये डिसाइड करना पड़ता है, बिकॉज उससे कंफ्लिक्ट ना आए। क्योंकि हो सकता है कुछ लोग ये कहें कि हमारा था हम नहीं देंगे या हमारे हिस्से का था, तो ये तो देखो मिलजुल के करने वाली बात होती है, ठीक है। तो मिलजुल के करने वाली बात होती है और जब वो करेंगे तो होगा भी, ठीक है। तो तो ये सोसाइटी में एक कम्युनिकेशन से ही चलना पड़ेगा, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, विद इन द पर्संस में एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। सो दे शुड अंडरस्टैंड। सो सबसे पहले तो हमें क्या था, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स को देखना पड़ेगा। उसमें क्या है कि अगर कोई न्यूट्रिशन या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो आप ये देखो कि जितने भी कम्युनिटी के ग्रुप्स हैं, ठीक है, जितनी भी फैमिलीज हैं, वो क्या सबके लिए एक ही जैसी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम में कितने लोग आ रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज है जिसने वो प्रॉब्लम क्रिएट किया। हो सकता है सोसाइटी में ही कुछ ऐसा हो रहा हो जिससे वो प्रॉब्लम बन गई हो, अदरवाइज वो प्रॉब्लम नहीं थी। एंड अब पॉसिबली हो क्या रहा है उसमें, वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्यों बन गई है, ऐसा क्यों हुआ कि वो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब उसका कोई सोल्यूशन भी पॉसिबल है या नहीं है, और अगर है तो उसमें से बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन कौन सा है, ठीक है। तो उसमें से बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन कौन सा है, क्योंकि एक प्रॉब्लम के काफी सारे सोल्यूशन हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। और एक में क्या होता है कि उसको करने का तरीका जो होता है ना, सोल्यूशन देने का, वो कई बार क्या होता है कि हम कहीं और कम्युनिटी में चले जाएं तो हो सकता है वहां पे हम बहुत अच्छा सोल्यूशन दे पाए उसके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली। But whenever we are living in one kind of the community, and those resources present in that community, and we have to use those resources only to solve a single problem of a single common problem of that community, which would be like common for all the community persons, and un resources को use करके the best possible solution what we can actually provide to those community members, okay. So we have to provide to those community members the single solution, okay. So how the solution will fit into the people's life, and then we have to solution could be common, okay. So that common solution would reach to each and every person who is living in that community using those common resources, okay. So uska wo best possible, and for every person it should, हम एक प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं और हो क्या रहा है, चार लोगों के लिए सोल्यूशन है और अगले दो लोगों के लिए वो प्रॉब्लम बन गया और भी बड़ी प्रॉब्लम बन गया। सो नो, प्रॉब्लम का हमने सोल्यूशन ढूंढना है सभी के लिए, द पर्सन्स हु आर लिविंग इन वन सोसाइटी, सो सभी के लिए। ऐसा ना हो कि दो लोगों के लिए वो सोल्यूशन है, चार के लिए प्रॉब्लम, या चार के लिए सोल्यूशन है, दो के लिए प्रॉब्लम, एक के लिए भी प्रॉब्लम नहीं। मतलब सोल्यूशन का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन फॉर एवरीवन। किसी के लिए 20-30% होगा, किसी के लिए 50 होगा, किसी के लिए 100% हो जाएगा। सो दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू देयर रिसोर्सेज, अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस in which they are living, okay. So if you're living in one kind of a society, then you have to think for the solution only and for each and every person living in that community, okay. So उसके बाद है फाइंडिंग कॉज टू दैट प्रॉब्लम। और जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया और हम सोल्यूशन ढूंढने की बात कर रहे हैं, और सोल्यूशन हमने हर किसी के लिए ढूंढना है, ठीक है। सो वी हैव टू थिंक अबाउट फॉर एवरीवन, एंड देन हमने जब प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है ना, सो देन वी हैव टू थिंक अबाउट कि अच्छा न्यूट्रिशन एंड हेल्थ रिलेटेड था, तो देन वी हैव टू सी कि कोई इनफ फूड नहीं था फॉर एवरीवन, ठीक है, स्पेशली फॉर यंग चिल्ड्रन। ये प्रॉब्लम है हमारी। सो बिकॉज हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास वी डोंट हैव द मनी टू बाय इट, बहुत कम है, नो जॉब्स इन दैट एरिया, नो एजुकेशन इन दैट एरिया, ठीक है, बैड रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन दैट एरिया, ठीक है, ताकि वो क्रॉप भी मार्केट तक नहीं ले जा पाते, ठीक है, सो दैट दे कैन नॉट अर्न, वो वेस्टेज है।
नॉट इनफ एंड क्लीन सेफ वाटर नहीं है, इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, पुअर फैमिलीज हैं विद टू मैनी चिल्ड्रन, एंड देन नेशनल प्रॉब्लम्स में इसको हम लेके जा सकते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम कि हम पुअर हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड पुअर है, अनसैनिटरी डिस्पोजेबल ऑफ रबिश एंड ह्यूमन वेस्ट है, इम्प्रॉपर वीनिंग प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। सो इसके लिए अगर ये सारी प्रॉब्लम हमने डिस्कस की हैं, उसका एक और प्रॉब्लम्स के ऊपर भी हमने प्रॉब्लम्स देखी कि एक्चुअली कॉजेटिव एजेंट्स क्या है। प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स का मतलब पता क्या है, प्रॉब्लम को क्रिएट करने वाले प्रॉब्लम्स की क्यों है, बिकॉज प्रॉपर वीनिंग प्रैक्टिसेस हैं, अनसैनिटरी डिस्पोजेबल ऑफ रबिश काइंड ऑफ गार्बेज है, ठीक है, एंड पुअर हैंडलिंग है, स्टोरेज ऑफ फूड प्रॉपर नहीं है तो बीमार ही होंगे, ठीक है। चलो ट्रांसपोर्ट की और एजुकेशन या नो जॉब्स होनी तो अलग बात है, लेकिन वो क्लीनली तरीके से रह भी नहीं पा रहे हैं, जो पानी है उसको भी वो क्लीन तरीके से नहीं यूज कर पा रहे हैं, और इम्प्रॉपर वीनिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, स्टोरेज ऑफ फूड प्रॉपर नहीं है, ठीक है। सो अब हमने डेवलप करना है, हमने अंडरस्टैंड करना है और स्टेट करनी है क्लियरली दैट व्हाट वी वांट टू अचीव, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, सो वो हम देख लेंगे कि ये होगा कैसे, ठीक है, ठीक है। सो जब हम वो अचीव करेंगे तो डिसाइड करनी पड़ेंगी हमें वो एक्टिविटीज और जो मटेरियल्स हैं, वो जो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। सो दैट वुड बी रिक्वायर्ड, दैट मटेरियल वुड बी रिक्वायर्ड, जस्ट वेट एक मिनट। सो दैट वुड बी दी डिसाइडिंग द एक्टिविटी एंड द मटेरियल वुड बी रिक्वायर्ड। सबसे पहले क्या है कि आपको ये स्टेट अंडरस्टैंड करनी है प्रॉब्लम, एंड देन स्टेट करना है क्लियरली, क्लियर आइडियाज, ये नहीं कि आधा जदा मतलब हाफ हार्टेडली और हाफ द वे और हाफ द सॉल्यूशन, आधी चीजें डिस्कस कर ली आधी की नहीं है, आधे सॉल्यूशन निकाल लिया, आधी प्रॉब्लम प्रॉब्लम रहेगी। सो नो, हाफ द वे वी आर हाफ स्लीपी भी नहीं करनी है, हाफ द वे भी नहीं करनी है, वी हैव टू थिंक क्लियरली कि व्हाट वी कैन अचीव विद दीज रिसोर्सेज। देन वी हैव टू डिसाइड द एक्टिविटीज कि हमें करना क्या है और हमें उसके करने के लिए क्या क्या चाहिए इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए। देन वी हैव टू आइडेंटिफाई द पीपल फ्रॉम दैट कम्युनिटी जिनकी हमें हेल्प भी चाहिए, हो सकता है जो बड़े थोड़ी फाइनेंशियली अच्छे लोग हैं वो कुछ ऐसी हेल्प करने के लिए पुअर पीपल की हैं, क्योंकि हर सोसाइटी में एवरी फाइनेंशियल स्टेटस का बंदा होता है, ठीक है, एवरी फाइनेंशियल स्टेटस की फैमिलीज होती हैं। सो गिविंग जॉब्स एंड टास्क टू पीपल सो दैट वी कैन डिसाइड कि कुछ लोग हैं जो लोगों के लिए ये डिसाइड कर लेंगे कि ठीक है कैसे होगा ये, ठीक है। सो कुछ जॉब्स दे सकते हैं, कुछ जॉब्स पे अपने पास रख सकते हैं, हो सकता है इसी कम्युनिटी में कोई रिच पीपल है, उनकी बहुत फैक्ट्रीज हैं, घर में भी चाहिए, तो वो जो बहुत पुअर हैं उनको वो एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब किसी ना किसी तरह से। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो पुटिंग द होल प्लान इनटू द टाइम फ्रेम लगा के, ये नहीं है कि हमने ये देख लेना कि जी अभी ये प्रॉब्लम चल रही है 10 साल तक होती रहेगी सॉल्व, नो। some problems are have to I mean discuss about that so that we can actually think about that and उसको टाइमली। अब देखो 1 साल का बच्चा आज है, उसकी प्रॉब्लम अब जो है उसकी फैमिली के साथ उस बच्चे को लेके, सो उसकी हेल्थ को लेके, उसके फूड को लेके, मेल न्यूट्रिशन को लेके, तो वो आज ही सॉल्व होगी। तो अगर आप 5-7 साल बाद उसको स्लोली स्लोली सॉल्व कर रहे हो और बच्चा 5-7 साल का हो गया, तो अब तक वो जो 1 साल का मेल नरिश था अब वो कितना मेलनरिश्ड हो गया होगा, तो उसकी ग्रोथ एंड ऑल एवरीथिंग वुड बी लाइक इस तरह से होगी कि मतलब वो ठीक है, वो इस तरह से होगी कि हम उसको प्रॉब्लम को एक टाइम फ्रेम में लेके करेंगे, क्योंकि आप यू कैन रियली थिंक जो आज एक प्रॉब्लम है वो और 1 साल के बच्चे की मेल नरिशमेंट की जो प्रॉब्लम आज आपको सॉल्व करनी है ना, अगर आप उसको स्लोली स्लोली करोगे तो 6 महीने बाद और एग्जैजरेट हो जाएगी, साल बाद और एग्जैजरेट हो जाएगी, 2 साल बाद वो, अब आप देखोगे कि 1 साल का बच्चा तो अभी मेल नरिश था बेशक,
बट वो दैट वाज नॉट इन दैट बैड कंडीशन। पर जब तक वो 2 साल आपने निकाल दे उसको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, या आपकी स्पीड अच्छी नहीं थी, या आपने एफिशिएंटली उसको नहीं किया, या जो इम्प्रॉपर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला मेल नरिशमेंट का, then you'll see कि now the kid would be of 3 years and उसकी जो प्रॉब्लम होगी ना वो अब ज्यादा एग्जैजरेटेड होगी। दिस यू शुड थिंक अबाउट कि उसका एक, तभी तो मैंने कहा कि एक टाइम फ्रेम होनी चाहिए। आपको रखना है कि ये मेल न्यूट्रिशन वाली जो भी प्रॉब्लम है पहले उसको आइडेंटिफाई करो, कितना है पोटेंसी, कितनी है मेल नरिशमेंट की और क्या है। तो आपको 6 महीने में के अंदर अंदर उसको ठीक करना है, और मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यू हैव टू थिंक अबाउट दैट एंड देन आपको करना है, उसको सॉल्व करना है। तो वो पहले दिन थोड़ी हो जाएगी, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, एंड 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने में वो काफी कवर हो जाएगी, 2 महीने में और कवर हो जाएगी, 3 महीने में। और अगर आपको आज पता चल गया और आप उसको नहीं देख रहे हैं, आप सोच रहे हो कि 15 दिन बाद शुरू करते हैं, 20 दिन बाद शुरू करते हैं, तो वो तो और एग्जैजरेट होती जाएगी, महीने बाद और एग्जैजरेटेड कंडीशन मिलेगी। एंड आप महीने बाद हो सकता है 10 दिन के लिए उसकी केयर करें और उसके बाद फिर छोड़ दें, अभी वो रिकवर हुआ भी नहीं था और उसके बाद उसको फिर छोड़ दिया, प्रॉपर नहीं देखा है, तो वो और एग्जैजरेट हो जाएगी। सो ऑल दीज थिंग्स वुड बी within I mean done within the stipulated time and with the I mean proper time frame, proper action, activity at the moment ही start करनी है, और जब तक वो प्रॉब्लम का एंड नहीं हो जाता ना, so you really don't need to uh, stop the activities जब तक वो प्रॉब्लम नहीं हो जाती। अच्छा, फिर आपको फिर से भी देखना है कि अब ये अब मतलब अब ये हो सकता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन रिलेटेड एंड ऑल, पर आपको फिर उसके बाद ये भी देखना है कि ये चीज कितनी सॉल्व हो गई है और कितनी सॉल्व नहीं हुई है, और जो आपने स्ट्रेटजीज बनाई वो ए प्लान वर्क कर रहा है नहीं करना है, कर रहा है। हो सकता है आपका ए प्लान वर्क नहीं कर रहा है, देन यू नीड टू शिफ्ट इट टू बी प्लान ऑल्सो, कि नहीं अब इसको इस तरह से करके देखो। ठीक है, अब एक चीज से सॉल्व नहीं हो रहा, दूसरी से, ठीक है, ए नहीं तो बी, तो नहीं तो फिर इन केस यू कैन वर्क ऑन अ सी प्लान टू। ठीक है, सो कोई ना कोई तो वर्क करता है, वैसे तो ए प्लान ही वर्क करता है, जब आप अच्छी इंटेंशन से, गुड इंटेंशन से अच्छा सोल्यूशन बना के प्लानिंग के साथ किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करते हो, सो वो काफी हद तक वर्क करता ही करता है। उसकी 100% नहीं आउटकम आएगी, 80-70 कुछ ना कुछ तो आएगी, एंड दैट वुड बी एक्चुअली मच। 100% फ्लॉलेस किसी भी प्लान पे वर्क करना और उसकी रिजल्ट्स 100% मिलने ना, इट्स नॉट दैट इजी। ठीक है, बट क्या होता है कि आपका जस्ट वेट, मेरी आई मीन आई हैव टू पुट ऑन बैटरी चार्जेस। ठीक है, just wait. ठीक है, सो आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर काम करना ही पड़ेगा, एंड देन यू कैन एक्चुअली प्रोड्यूस अ रिजल्ट। ओके, so this was with the first topic of this book, and then we have to go shift to the second chapter, and then which is about the community nutrition and health। अभी हमने क्या दिक्कत किया, पहले चैप्टर में हमने क्या किया, community में and the problems, and the first problem was the community nutrition and health। okay, so we have started talking about that। so अगर हम ये पहली प्रॉब्लम ही लेके चले, which is the first important and the foremost problem of the community, सो होगा क्या कि न्यूट्रिशन एंड हेल्थ को लेके, तो हेल्थ भी कितनी तरह की है, ऑब्वियसली वी हैव टू थिंक अबाउट द फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इवन द स्पिरिचुअल हेल्थ। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स, साइकोलॉजी, ये सारी इसमें कवर हो जाती हैं। सो हमें क्या डिस्कस करना है कि फिर ओवरऑल क्या है कि जब वी हैव टू थिंक अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन, सो ईच एंड एवरी पर्सन इज single unit which is a participant of that community। each and every person of the each and every family living in that community should be healthy physically, mentally, socially, and spiritually too। so then we can think that the whole of the society, whole of the community is actually healthy। ओके, सो अगर ऐसे ऐसे कम्युनिटीज हमारे इंडिया में कितनी है, तो ऐसे ऐसे कम्युनिटी जब हर कोई हेल्दी होगा, हर कोई इन चारों कैटेगरीज में हेल्दी होगा, only then the country would be healthy। okay, so the first of all, the foremost problem, so we have to discuss about that कि हमने कंसेप्ट ऑफ हेल्थ फिर लेना है। हेल्थ होती क्या है,
हमने डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्थ की बात की, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल टू। फिर हम कम्युनिटी हेल्थ की बात करते हैं, बट हेल्थ होती क्या है? हेल्थ बेसिकली एक कम्युनिटी न्यूट्रिशन का पार्ट है, बिकॉज हम कम्युनिटी न्यूट्रिशन की बात इसलिए कर रहे हैं और हेल्थ को हम इसके साथ रिलेट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एक कम्युनिटी में एवरी पर्सन डील्स विद, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ईच एंड एवरी पर्सन मैटर्स एंड हेल्थ ऑफ द ईच एंड एवरी पर्सन मैटर्स। क्योंकि अगर सपोज अपने कोविड में देख ही लिया कि अगर कोई पर्सन एक डिजीज से आई मीन सफर कर रहा है, तो दैट कुड बी एक्चुअली रीजन ऑफ बैड हेल्थ फॉर एवरी पर्सन। कोविड एक कोई हुआ था सोसाइटी में, देन इट वुड गो टू दी ईच कंट्री। अभी मैं एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ, हर कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में फैल गया वो। ठीक है, तो हर पर्सन की पर आप देखो, ये तो कम्युनिकेबल डिजीजेस वाली बात थी। अगर कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं है देन तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट उस पर्सन के लिए तो है ना, उस फैमिली के लिए तो है ना। फिर हॉस्पिटल के लिए भी बन जाती है, स्टाफ के लिए भी बन जाती है। ठीक है, सो आपको फिर ये देखना पड़ेगा कि अब उस फैमिली के अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज है फिर तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, देन वी हैव टू टेक केयर अबाउट दैट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हु जिसको बोलते हैं, WHO, हु बोलो, WHO बोलो, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ये फुल फॉर्म है इसकी। सो वो क्या है, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसी कम्युनिटीज के ऊपर काम करती है और कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड की हेल्थ के लिए बनी हुई है। इसमें सारी सोसाइटी के मेंबर्स हैं, irrespective of the country, irrespective of the societies, irrespective of the person, caste, creed, कुछ भी कंट्रीज का डिफरेंस लगा लो एंड ऑल, इसमें सब है। बस उनका एक ही मकसद है कि पूरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये पक्का बनाया हुआ है कि हमें ईच एंड एवरी पर्सन की हेल्थ से आई मीन एक सरोकार है, वट एवर दे आर कंसर्न्ड विद ओके। सो उन्होंने फिर WHO के अकॉर्डिंगली हेल्थ को कैसे डिफाइन किया जाता है? A state of complete, this is actually a definition, a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being, and not merely the absence of a disease. ऐसा नहीं है कि एक पर्सन है उसको कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है, नो, बट वो फिजिकली एक्टिव नहीं है, स्टेमिना नहीं है, बीमार नहीं है पर फिजिकली एक्टिव भी नहीं है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल्स है और स्टेमिना नहीं है, वो ज्यादा फटीग्ड रहता है या किसी कोई बीमारी नहीं है, बट अच्छा मेंटली भी ऐसे ही सुस्त, थोड़ा डिप्रेसिव सा, बहुत मेंटल स्टेट, मतलब क्लिनिकल स्टेट में नहीं है। ठीक है, एंड सोशली भी बहुत एक्टिव नहीं है, लोगों से नहीं मिलना है, अलूफ रहना है। ठीक है, एंड उसके बाद स्पिरिचुअली भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, कोई प्रेयर्स में कोई बहुत, हम ये नहीं कहते कि बहुत सुबह शाम प्रेयर करते हैं बाकी और ये नहीं कर रहा है, but yes, but still a little bit of the things that should be he should go for. ओके, चाहे घर में थोड़ी प्रेयर 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, या फिर प्रेयर्स नहीं है किसी भी तरह की, या खुद भी आंखें बंद करके मेडिटेट काइंड ऑफ अ थिंग। सो दिस इज ऑल्सो एक्चुअली मैंडेटरी फॉर द स्पिरिचुअल, फॉर द हेल्थ। ओके, सो ऐसा नहीं है कि मैं मेडिटेशन को एंडोर्स कर रही हूँ या क्या कर रही हूँ, बट हाँ, मेडिटेशन इज वन ऑफ द थिंग विच कैन बी एंडोर्स so that it would lead to the mental well-being of the person. So वो physically भी फिर हो जाता है, and it could be leading to the proper digestion of the food also. Okay, so जब वो mentally, physically and properly digest हो रहा है खाने को, तो वो healthy भी feel करेगा, stamina भी होगा, and then वो socially भी अच्छा behave करेगा। So ये सारी चीजें ना hand in hand होती हैं। तो फोर्थ डायमेंशन जो है ना स्पिरिचुअल हेल्थ का, जो मैंने इसमें भी जोड़ा, लेकिन वो हमारी कंट्री में बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वी आर मोर स्पिरिचुअल। बाहर भी हैं बट वी हैव अ मोर रिलीजन्स, मोर मंदिर, गुरुद्वारे, मॉस्क्स, चर्चेज और भी बहुत तरह के है ना रिलीजन्स हैं। सो हर बंदा ज्यादा ही स्पिरिचुअल है, ज्यादा गुरु हैं यहाँ हमारे किसी भी तरह के। तो इस तरह से स्पिरिचुअल हेल्थ हमारे यहाँ पे बहुत ही हेल्दी वे में लेते हैं और हेल्दी वे में ही उसको ट्रीट भी करते हैं। और अगर कोई कर रहा है क्या नाम है उसका, कर भी रहा है कोई तो स्पिरिचुअली प्रेयर्स एंड ऑल, सो उसको भी मानते हैं कि यस यस दिस कुड वर्क एक्चुअली फॉर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। ठीक है, सो ये सारी चीजें इसमें आपने एक, जब ये डेफिनेशन आएगी पेपर में, और आपको ये याद भी रखना है, इट्स नॉट द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द डिजीज, कि बीमार नहीं है तो वो हेल्दी है, नो,
then also the person is not healthy. पर वो अगर वो complete state of physical, mental, social well-being में है, ठीक है, or it's not merely the absence of the disease, so that means the person is treated to be healthy, in a sound state of health. ओके, सो एक और डेफिनेशन होती है कि हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी. ऑब्वियसली अगर आपका माइंड हेल्दी कभी हो ही नहीं सकता, अगर आपका हल्का सा सिर भी दर्द हो रहा है, हल्का सा स्टमक में कोई प्रॉब्लम है, इवन इन डाइजेशन है, सो यू कैन नॉट जस्ट थिंक टू हैव अ हेल्दी माइंड. आपका माइंड काम ही नहीं करता है. थोड़ी सी भी इंडाइजेशन है, थोड़ा सा भी सिर दर्द हो रहा है, थोड़ा सा भी टांग दर्द हो रही है, कुछ भी हो रहा है, इतनी छोटी प्रॉब्लम से भी, सो अगर आपकी बॉडी पूरी तरह से हेल्दी है, ओनली देन यू कैन हैव अ हेल्दी माइंड. सो हेल्दी माइंड जो है, दैट रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी ओनली. सो दिस डेफिनेशन शुड बी. अब नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ. पहले हमने हेल्थ की बात की, कम्युनिटी हेल्थ में पर पर्सन की बात की. पर पर्सन की बात करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट काइंड ऑफ द हेल्थ, जो फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ की बात हमने की. सो नाउ हेल्थ में अब हम फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे. सो इसमें साइंस पता कौन से होते हैं फिजिकल हेल्थ को चेक करने? एक तो क्लियर स्मूथ स्किन होती है ऑब्वियसली, और लस्ट्रस आईज एंड हेयर होंगे, फाइन मसल्स होंगे, वो बहुत फैट नहीं होगा, गुड पिंक कलर एंड लीजन्स ऑफ द टंग पे भी पिंक कलर की होगी, ठीक है, फर्म गुड पिंक कलर गम्स होंगे, स्ट्रेट टीथ, डिस्कलरेशन नहीं होगी, उसका पोस्चर भी इरेक्ट होगा, और भूख भी उसे ठीक ठाक लगेगी, एंड रेगुलर हैबिट्स होंगी उनकी. ऐसा नहीं है कि सुबह उठते हैं शाम को उठते हैं, रोज की हैबिट चेंज की हुई है, आज कुछ है आज कुछ है, कल 10 बजे तक सोए, परसों 8 बजे उठ गए, फिर सोचा 6 बजे उठूंगा, फिर वो दूसरे दिन नहीं उठा जा रहा है. मतलब ऐसी सी शाम को भी सैर करने जाना, खाना टाइम पे खाना, सोना टाइम पे, एक्सरसाइज टाइम पे करनी, ऑफिस टाइम पे पहुंचना. सो दीज आर रेगुलर हैबिट्स. ओके, सो एक बंदा है जो कभी 6 बजे उठता तो टाइम पे पहुंच जाता, कभी 8 बजे उठता तो लेट हो जाता, कभी वो 10 बजे तक नहीं उठा जाता और भी लेट पहुंचता, फिर छुट्टियां करेगा, फिर काम प्रॉपरली नहीं है, हर वक्त स्लीपी रहता. मतलब ऐसी सी चीजें होती हैं. आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट रेगुलर हैबिट्स. द पर्सन हु इज हेल्दी, सो उसके ये साइंस है, बाहर से भी अपीयरेंस भी ऐसी होगी और ऐसे भी साइंस होंगे. सो गुड एंड साउंड स्लीप भी वो लेता है, गुड एंड इजी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स भी होती हैं उसकी. मतलब गुड भी, अच्छी नींद भी आती है और बहुत गहरी नींद आती है उसको. और स्मूथ एंड इजी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट, मतलब स्मूथ है, कोई वो अगर उठता है तो बड़े आराम से उठता है, उसको उठने में दिक्कत नहीं है, और अपने सारे काम आराम आराम से कर लेता है, इसलिए हफ्ता दफरी नहीं है, क्योंकि वो टाइम पे सोता है, टाइम पे खाता, टाइम पे उठता है, तो टाइम पे सारे काम हो रहे हैं. सो दिस इज एक्चुअली द साइंस ऑफ द हेल्दी पर्सन. अगर आपने किसी पर्सन को देखना है कि वो हेल्दी है, तो ये सारे साइंस होंगे. अपीयरेंस भी उसकी एक्टिविटी से भी आपको पता चल जाएगा. ठीक है. नाउ इफ यू थिंक अबाउट द मेंटल हेल्थ, सो जो मेंटल हेल्थ है ना, वो भी कंपैरेटिवली एक्चुअली ना, मेंटल हेल्थ को हम इजीली एक्सप्लेन बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेंटल जो है वो एक तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट, कई बार हमारे अंदर ही कुछ लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, हम कुछ सोचते रहते हैं, कुछ चीजों की स्ट्रेस रहती है, हम अपने आप से भी लड़ते हैं, कई बार हमारे अंदर ही एक ही चीज के दो दो तीन तीन चार चार सॉल्यूशंस घूम रहे होते हैं और हम उसको डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं. सो डिसीजन लेना इमीडिएट इज ऑल्सो वन ऑफ द complete state of the sound mental health which shows. Okay, सो गुड कंट्रोल ओवर, ऐसा नहीं है कि टाइम की मैं बात कर रही हूँ कि जल्दी से डिसीजन लेना, नो, प्रॉपर डिसीजन विद गुड एनालिसिस. ओके, सो द गुड एनालिसिस ऑफ द थिंग्स वुड बी रिलेटेड टू द साउंड स्टेट ऑफ द मेंटल हेल्थ. ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि जल्दी डिसीजन ले लिया तो वो गलत भी होते हैं, नो, हफड़ा दफड़ी में नहीं, सोच के तरीके से और बहुत डिले नहीं करते हैं तो. ठीक है. सो अनलाइक फिजिकल हेल्थ ना, मेंटल हेल्थ को एक्चुअली मेजर करना इट्स डिफिकल्ट. सो इसमें क्या है कि आपका कंट्रोल ओवर होना चाहिए अपने इमोशंस. लाइक आप डरे जा रहे हो, नो, एक डर आया, उसमें से सिचुएशन में से आप निकले, एंड देन दैट शुड गो. ठीक है, दैट शुड मूव. एंड एंगर, गुस्सा चढ़ा तो गुस्सा ही चढ़ा रहता है, नो, दैट्स नॉट द थिंग कि आपको गुस्सा ही चढ़ा रहे. ठीक है. और अगर आप को जेलसी हो रही है किसी से, नो, यू शुड थिंक अबाउट दोज रीजंस, यू शुड वर्क अपॉन दोज रीजन जिससे आपको जेलसी हो रही है, या जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, या जिससे आप डर रहे हैं. सो अगर हेल्दी बंदा होगा ना, मेंटली हेल्दी होगा, स्ट्रॉन्ग, फिजिकली भी हेल्दी है, then that person would start working on those jealousy feelings, fear feelings,
इमोशनली डाउन जो लो फील कर रहा है उसके ऊपर, सो दैट उसको वो रिमूव करके ही शुड कम इन टू दैट साउंड स्टेट ऑफ मेंटल। 24 घंटे डरते ही नहीं रहना, 24 घंटे रोते ही नहीं रहना, 24 घंटे जेलसी नहीं करनी, 24 घंटे गुस्से वाली बात पे गुस्सा आया, दैट्स फाइन, बट उस गुस्से पे भी कंट्रोल होना चाहिए इफ यू हैव अ साउंड स्टेट ऑफ माइंड। सो फियर पे भी कंट्रोल होना चाहिए, यू हैव टू बी वेरी, मतलब एक चीज हो गई उससे डरते रहते हैं, कई बार इतना ट्रॉमा बैठ जाता है, बट नहीं, चीजें लाइफ में होती हैं, बट यू हैव टू कम आउट दैट इफ यू आर हेल्दी एंड इफ यू हैव अ साउंड स्टेट ऑफ माइंड, देन यू विल बी वर्किंग ऑन दैट फियर एंड देन यू विल कम आउट विद दैट फियर। क्योंकि ये सारी चीजें आपकी हेल्थ और न्यूट्रिशन पे भी बहुत, आपकी डाइजेशन पे भी बहुत, हेल्थ एंड स्लोली 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 आपकी हेल्थ डिटीरियोरेट हो जाएगी। ओके, सो उसके बाद क्या है, जेलसी भी किसी से, मतलब किसी भी तरह की, आई मीन किसी से, या वो, आई एम नॉट इनटू दैट जेलसी, यू पीपल नो क्या होती है। सो आपको हर चीज से जल्दी निकल के आना। पुअर मेंटल हेल्थ में अफेक्ट द फिजिकल हेल्थ, ठीक है। पुअर जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करेगी ही करेगी। अगर आपको किसी चीज की स्ट्रेस है तो भी आपको पता है आपका खाने के ऊपर बहुत ही फर्क पड़ेगा। सम पीपल दे स्टार्ट ईटिंग मोर इन दी stress conditions and some people they cannot have even a sip of a water in the stress conditions. So ऐसे होता है, अगर कोई ज्यादा खाना शुरू कर देगा then also it's a bad part, and if any person cannot even drink a sip of a water, ठीक है, so that also a bad part, so that could lead to the physical health। और एक दिन में 2 दिन ये स्ट्रेस रहेगी, खाने पीने का पूरा इफेक्ट आ गया, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद क्या होगा कि आपकी वही सारी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो फिजिकल हेल्थ पे दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, और वो एकदम से ना पता चले, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर मंथ और सो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे उसके वर्स्ट इफेक्ट्स, इवन इफ यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। तो ये जो वर्स्ट इफेक्ट्स होते हैं ना, ये आने शुरू हो जाते हैं, किसी के थोड़े, किसी के ज्यादा, कैसे भी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल से होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेस विच यू हैव हैंडल्ड। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सोशल हेल्थ, तो उसमें क्या है कि सोशल वेलबींग का मतलब ये है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। सोशल हेल्थ का मतलब है कि आप अपने जो फेलो पर्सन्स हैं, आप अपने नेबर्स हैं, ऑफिस पर्सन्स हैं, या मार्केट के बंदे हैं, उनके साथ अपने गुड रिलेशंस अच्छे मेंटेन किए हुए हैं, हेल्दी रिलेशंस मेंटेन किए हुए हैं। व्हेन यू मीट एनी पर्सन, तो आप हंस के मिलते हैं, और आपकी एक अपनी फैमिली है जिसमें भी आपके अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, और आप अपनी फैमिली को बिलोंगिंगनेस दिखाते हैं, केयर दिखाते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स भी आपके लिए दिखाते हैं, एंड अपने रिलेशंस को आप सोसाइटी में एक नेक्स्ट स्टेज तक लेके जाते हैं। पहले कम अच्छे थे, फिर और अच्छे, डे बाय डे यू मेक द गुड रिलेशनशिप्स। ओके, सो दैट पर्सन वुड बी एक्चुअली, जो सोसाइटी की वेलबींग के लिए भी कुछ कर रहा है, सोसाइटी में कम्युनिकेट भी करता है, वेलबींग के लिए भी कुछ करता है, हेल्प के लिए तैयार रहता है हमेशा, और उसकी हेल्प के लिए भी फिर लोग तैयार रहते हैं, अपनी फैमिली के लिए भी तैयार रहता है। सो ऐसे लोगों के लिए जो सोसाइटी की वेलबींग और कम्युनिटी की वेलबींग के लिए काम करते हैं, तो उनकी सोशल हेल्थ जो होती है बहुत अच्छी रहती है। और स्पिरिचुअल हेल्थ का ये है कि अब तो वेस्ट के लोग भी बहुत मेडिटेशन, बहुत मंदिरों, गुरुद्वारे और वट एवर चर्चेज, वो जहाँ भी जाते हैं, वहां भी ये स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत वर्क करने लगी। इट्स नॉट ओनली द इंडिया ओनली, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली इम्पोर्टेंट ऑफ कंसर्न है इसका, कि ये जेन्युइन डिजायर टू हेल्प एंड टू बी असिस्टेंट, बिकॉज एवरी रिलीजन, एवरी कम्युनिटी में क्या सिखाता है, सिर्फ हेल्प करनी सिखाता है लोगों की, सोशली स्ट्रांग होना बताता है, एक दूसरे की हेल्पिंग हैंड बताता है, एंड उसको मेडिटेशन करना सिखाता है। स्ट्रेस फैक्टर्स कम होते हैं बिकॉज आप सिमरन करते हो, वट एवर यू मेडिटेट करते हैं, सब कुछ करते हैं। So then you'll be maintaining your healthy sound state of mind, okay? So yoga meditation is also part of that. So इसमें क्या है कि inner peace के लिए लोग काम करते हैं, even the western person they have also started, okay? So concept of nutrition का इससे relation है कि foods and how much, अच्छा अब foods पे आ जाएगा कि हम लोग करते क्या हैं, कि हम जो फूड कंज्यूम करते हैं ना, वो कितना खाना है, कैसे खाना है, किसके साथ खाना है और कब खाना है, ये चीजों का अगर आपको पता है देन यू विल बी हेल्दी। अगर आप रात को फालतू खाना खा रहे हैं, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट अच्छे से नहीं कर रहे हैं, जबकि रात को कम खाना चाहिए, सुबह अच्छा सा खाना चाहिए, तो वो टाइमिंग का फर्क है, और खाना क्या खाना चाहिए उसका भी फर्क है। और आपको फिलर, परांठास एंड ऑल, घी तेल ज्यादा खा रहे हैं, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, मैदा ज्यादा ले रहे हैं, तो दैट वुड बी अनहेल्दी। अगर आप घर के खा रहे हो तो आप हेल्दी न्यूट्रिशन फूड, ओके।
आप अपने क्लिनिकल साइंस ऑफ हेल्थ को देखते हैं हमेशा, जैसे ब्लीडिंग ऑफ गम से शुरू करके कोई इन्फेक्शन है, कहीं ईचिंग है, कोई एलर्जिक रिएक्शंस है। सो आप इन सब चीजों को नोटिस कर रहे हैं, खाना भी प्रॉपर्ली खा रहे हैं, सोशल मेंटल हेल्थ और वो सारी मेंटेन कर रहे हैं, एंड देन खाने में जो जो चीजें खानी चाहिए, किस टाइम खानी चाहिए, किसके साथ खानी चाहिए और कितनी खानी चाहिए, इन चीजों का आप ख्याल रख रहे हैं। एंड देन आप अपने साइंस भी देखते रहते हैं बॉडी के कि कोई डिजीज का इनिशियल साइन ना हो, ठीक है। और ब्लड और यूरिन के जो भी बायोकेमिकल वैल्यूज हैं वो आप टाइमली चेक करवाते रहते हो क्लिनिकल लेबोरेटरीज में, सो दैट यू शुड एक्चुअली अवेयर ऑफ दैट of the your own health कि हाँ मेरे बायोकेमिकल पैरामीटर्स। सो नाउ कमिंग टू द कम्युनिटी हेल्थ। अब समटाइम्स क्या होता है कि कम्युनिटी हेल्थ में क्या है, एक कुछ कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं कि समटाइम्स ना वो फैलती हैं, ठीक है, जिसमें हमारी जैसे जॉन्डिस भी हो गया। समटाइम्स द पीपल दे स्टार्ट सफरिंग विद द जॉन्डिस इन सम पर्टिकुलर एरिया, सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ द जॉन्डिस, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपके पास डायरिया, कोई ऐसी चीज आपने खा ली है कि सब लोगों को डायरिया हो गया, कॉलरा फैल जाता है कई बार, फ्लू फैल जाता है कई बार, ठीक है। सो वो सारी जो डिजीजेस जो कम्युनिकेबल होती हैं या फिर किसी एक रीजन से फैलती हैं, या फिर कोई ऐसी उस पानी में कोई दिक्कत है, या वहां के फूड में कोई दिक्कत है, आटे में कोई दिक्कत है, या किसी भी चीज में कोई दिक्कत है कि आपको अनीमिया हो रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस, जेनेटिक डिजीजेस हैं, क्योंकि उसी कम्युनिटी में ना शादियां भी एक कम्युनिटी में होती है, तो जेनेटिक डिजीजेस भी बीच में ही रह जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वो जीन पूल मिक्सअप होता है, तो वो वैसी सी चीजें। सो यू हैव टू थिंक अबाउट दोज रीजंस जस्ट टू eradicate the those kind of a diseases in any person, any community. So now coming to the this was पहले हमने इंडिविजुअल हेल्थ की बात की है, फिर हमने कम्युनिटी हेल्थ की बात की है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कम्युनिटी न्यूट्रिशन। जो कम्युनिटी न्यूट्रिशन है वो स्टडी है किसकी, फूड एंड वट एवर क्या कहते हैं उसको, यस, सो हाँ, food, identification of the food and the nutrition problems and the causative factors also कि ये problem यहाँ क्यों है, possible solutions for both the prevention and the cure of the problem, ठीक है। ये सब कुछ हमें देखना है, सबसे पहले हमारी न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फिर उसके पॉजिटिव फैक्टर्स, एजेंट्स, क्यों है ऐसी प्रॉब्लम, फिर पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस इन दैट कम्युनिटी, ठीक है, एंड देन द प्रिवेंशन एंड द क्योर ऑफ दैट प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम ये क्या रियलाइज करते हैं कि जो कम्युनिटी न्यूट्रिशन एंड हेल्थ है ना, इसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं। न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स किसी भी कम्युनिटी में इंडिकेट करती हैं न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ दैट डिफरेंट फैमिलीज, डिफरेंट ग्रुप्स इन दैट कम्युनिटी, ठीक है। सो फिर अब हर सोसाइटी में अगर न्यूट्रिशन रिलेटेड भी प्रॉब्लम है ना, तो वो किसी ना किसी रीजन की वजह से है, ठीक है। सो द पॉपुलेशन जो हमने देखी है कि वो मार्जिनली इनएडिक्वेट डाइट ले रही है, सपोज हमने रीजन है, देखो ना, अब हम किसी कम्युनिटी को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अब हम देखते हैं कि इस कम्युनिटी के लोग ना मार्जिनली इनएडिक्वेट डाइट लेते हैं, पूरी डाइट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो फिर वो वीक 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 होते जाते हैं, एनीमिक होते जाते हैं, जैसे एनीमिक होंगे देन दे विल बिकम मोर प्रोन टू सम काइंड ऑफ द डिजीजेस, बिकॉज एनीमिक होंगे तो वो इम्यूनिटी उनकी पुअर होगी, ठीक है, एंड लेस एफिशिएंट होंगे वो बोथ, कैसे, फिजिकली तो हो ही गए, फिर मेंटली भी हो जाएंगे, ठीक है। सो फूड कंजम्पशन जो है ना वो वैरायटी ऑफ फैक्टर से है। अब कई लोग नहीं खाना खाते हैं, प्रॉपर नहीं खाते हैं, तो वैरायटी ऑफ फैक्टर्स है, जैसे कि अगर हम न्यूट्रिशनल सर्विलेंस करें, न्यूट्रिशनल सर्विलेंस इज आल्सो वन ऑफ द टर्म गिवन टू whenever we'll start working on the community nutrition, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्यों है ऐसे में। So it could be said describe the process of attempting to estimate the number of the individual in a population, ठीक है। सो अब हमें देखना है कि ये वाले बंदे, इससे पहले आप टोटल कम्युनिटी को सर्च करो, कम्युनिटी को सर्च करके उस कम्युनिटी में देखो टोटल बंदे कितने हैं, कितनी पॉपुलेशन है, और उनमें से कितने लोगों को ये है। अगर ज्यादातर है तो सीरियस प्रॉब्लम है, हाफ को है देन ऑल्सो सीरियस प्रॉब्लम, 10% को है देन ऑल्सो, बट आपको देखना है कि कितने लोगों को है, क्यों है। अब हो सकता है वो जो जितने भी लोग सफर कर रहे हैं वो इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन ले रहे हैं इन टाइप ऑफ द टाइम एंड द डिग्री। टाइप, फूड ऑफ टाइप एंड डिग्री का मतलब ये हुआ कि उनको हेल्दी फूड खाना है, वो नहीं खा रहे हैं, जंक फूड है, मतलब इस तरह का फूड खा रहे हैं। डिग्री मतलब न्यूट्रिशन की डिग्री बिल्कुल भी नहीं है उसमें, मतलब दे आर नॉट एट ऑल ईटिंग दी टाइप ऑफ द फूड, कितने टाइम खाना है, किसके साथ खाना है, मतलब कुछ भी ध्यान नहीं रख रहे हैं।
सो नाउ अब हमें जब आइडेंटिफाई कर लेंगे इस प्रॉब्लम को, देन वी हैव टू थिंक अबाउट द करेक्टिव एंड द प्रिवेंटिव मेजर्स दैट कुड बी डिटर्मिन्ड एंड स्टेप्स टू टेकन द सूटेबल एक्शन एंड प्लान्स। ओके, सो इस एक्सप्लेनेशन को अगर हमने देखना है ना, अब ये आता है न्यूट्रिशनल सर्विलेंस के अकॉर्डिंगली, और यू कैन से इट्स अ कम्युनिटी न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशनल सर्विलेंस किसमें है? इन अ कम्युनिटी। कम्युनिटी न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशनल सर्विलेंस, मैं इसको एक ही वर्ड देती हूँ, कम्युनिटी न्यूट्रिशन सर्विलेंस। ठीक है, मतलब कम्युनिटी में न्यूट्रिशन के ऊपर हमने सर्विलेंस बिठा दी है, जिससे हम उस कम्युनिटी में हम डायग्नोज कर पाए, वी शुड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि किस तरह के फूड की inadequacy है, the persons they are not at all taking a typical kind of a food, they are totally on one kind of a food, और junk food और healthy food नहीं है, यहाँ होता ही नहीं है, या ये चीजें उगती ही नहीं है ग्रीन वेजिटेबल्स, या यहाँ पे आयरन रिच रिसोर्सेज नहीं है, या यहाँ पे कैल्शियम के रिसोर्सेज नहीं है, या वो कैल्शियम रिसोर्सेज खाते हैं पर पानी में ऐसी कोई चीज आ रही है उस जमीन में से कि वो सबको, मतलब ऐसे से कुछ भी हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। ठीक है, हम आपको, मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इस तरह का कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको काम करना पड़ सकता है ऐसी सी कम्युनिटी पे, ऐसी सी चीजों पे, सो दैट यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन अ कम्युनिटी न्यूट्रिशन सर्विलेंस के अकॉर्डिंगली, डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन पॉजिटिव एजेंट ऑफ द प्रॉब्लम, क्या कॉज है, एंड देन यू हैव टू प्लान फॉर इरेडिकेशन ऑफ दैट। नॉट टोटली इरेडिकेशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल कुछ ना कुछ इरेडिकेशन के लिए तो आपको काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, कि कैसे इरेडिकेट करें, कितना होगा वो हम देखेंगे, पहले आप प्लान करो, फिर उस पर वर्क करो, फिर उसको एवेलुएट करो। हमने 100% सोचा था, हमने 80% सोचा था, नहीं हुआ कुछ नहीं, पर कुछ तो होगा, सो स्टार्ट वर्किंग। सो कम्युनिटी डायग्नोसिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। तो उसमें कुछ भी आ सकता है कि आपको फैक्टर्स, कुछ भी पॉजिटिव एजेंट, एजुकेशनल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, एग्रीकल्चर और हेल्थ रिलेटेड भी हो सकते हैं। एजुकेशन में क्या है कि लोगों को अवेयर ही नहीं है फूड एंड न्यूट्रिशन की, बच्चों की हाइजीनिक की केयर करने की, आपकी हाइजीनिक कंडीशन होती है, सैनिटेशन होती है, ठीक है, इनकी नॉलेज नहीं है, बिकॉज दे आर लेस एजुकेटेड। हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, आपको आइडेंटिफाई करना है। सोशली क्या है? अनहाइजीनिक, क्राउडेड एंड इनसैनिटरी कंडीशन, मदर एंड चिल्ड्रन ओवर बर्डन है वर्क के साथ, फार्म एंड होम में रेस्ट नहीं मिलती है, फूड फिर भी पूरा नहीं मिल रहा है। इकोनॉमिकली पुअर, एग्रीकल्चरल यील्ड ही बहुत है, मेहनत ज्यादा है, यील्ड कम हो जाती है, तो लो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। सो कल्चरली क्या होगा कि अनडिजायरेबल ट्रेडिशंस और द रिलीजियस बिलीव्स व्हिच अफेक्ट द डाइट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द प्रैक्टिसेस सच एज द चाइल्ड स्पेसिंग एंड सो ऑन। चाइल्ड स्पेसिंग क्या हुआ कि कल्चरली ना हमें होता है 4 बच्चे होने चाहिए, 5 बच्चे होने चाहिए पुराने वाले लोग, और बच्चे हर साल या साल 1.5 साल के गैप के बाद लेडी बच्चा पैदा कर रही है, तो वो खुद भी मेलनरिश्ड हो जाएगी, बच्चे भी मेलनरिश्ड ही होंगे। गैप नहीं है, उसकी अपनी हेल्थ को भी गैप नहीं मिल रहा है कि वो एक बच्चा हुआ तो उसको वो पूरा ओवरकम कर ले, पूरा न्यूट्रलाइज कर ले जो कुछ भी लॉस हुए हैं उसको, फिर वो दोबारा कंसीव करे, नो। तो बच्चों की हेल्थ के ऊपर भी फर्क पड़ेगा और उसके अपनी हेल्थ के ऊपर भी। सो एग्रीकल्चरली नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्टेन काइंड ऑफ द फूड, एग्रीकल्चर में क्या है कि उस जगह पे कोई एक तरह का खाना मिलता है और दूसरी तरह का खाना होता ही नहीं है। सो क्योंकि वो जमीन ऐसी है कि उस कम्युनिटी की कि उस पे वो फैलता ही नहीं है, होता ही नहीं है। ठीक है, सो कॉमन इश्यूज क्या है मोहन? पॉसिबल रिसोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन क्या है? कॉमन इश्यूज क्या है हमारे पास? न्यूट्रिशन एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें क्या है, प्रेवलेंस ऑफ मेल न्यूट्रिशन हो सकता है, कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस हो सकती हैं, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय विद द मेल न्यूट्रिशन हो सकता है। सो इसमें क्या है, इसके पॉसिबल सोर्सेज क्या हो सकते हैं, क्यों होंगी ये प्रॉब्लम? हो सकता है लोकल क्लिनिक्स, हॉस्पिटल, आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड द हेल्थ प्रॉब्लम वर्कर्स, they can identify all going one to one as a interview लेके इनके साथ काम करके और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑफ द पीपल, मेन ऑक्यूपेशंस नहीं पता है, या टाइप ऑफ हाउसिंग, सोशल कस्टम्स, वाटर एंड सैनिटरी कंडीशंस को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो ये करेंगे कौन? लोकल लीडर्स, पीपल इन द सोसाइटी और कम्युनिटी। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हो सकती हैं? यूथ क्लब्स हो सकते हैं, विमेन ग्रुप हो सकते हैं, तो उसमें लोकल लीडर्स होंगे उसी कम्युनिटी के पर्संस। पब्लिक सर्विसेज कौन कौन सी? काइंड ऑफ रोड्स, डिस्टेंस ऑफ टू स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, नंबर ऑफ काइंड ऑफ द कम्युनिटी वर्कर्स, इसमें काम करने के लिए हमें कम्युनिटी से ही वर्कर्स चाहिए। सो पॉपुलेशन ग्रुप्स कौन से हैं? एवरेज साइज ऑफ द फैमिली कितना होना चाहिए, एवरेज एज ऑफ द फार्मर कितनी होनी चाहिए, एवरेज एज ऑफ द वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन, प्री स्कूल चिल्ड्रन। तो ये हमें सेंसस डेटा के थ्रू मिल जाता है, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई।
सो फूड प्रोडक्शन एंड अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है जो, उसमें हमें क्या देखना, हाउ पीपल दे गेट देयर फूड, मेन क्रॉप्स जो हैं, और लाइफ स्टॉक हमारे पास कितना पड़ा है, सीजनली अवेलेबल फूड्स किस तरह के हैं और कितने हैं, एंड ईटिंग पैटर्न्स किस तरह के हैं इस सोसाइटी में लोगों के, फूड बिलीव्स कैसे हैं, एटीट्यूड्स कैसे हैं टुवर्ड्स पर्टिकुलर काइंड ऑफ अ फूड, ठीक है, चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस कैसी हैं मदर से, ठीक है। सो पीपल इन द कम्युनिटी, लोकल लीडर्स, कम्युनिटी वर्कर्स एंड द लोकल शॉप्स एंड द मार्केट्स को भी हमें सर्वे करना पड़ेगा उस दैस कम्युनिटी की, ताकि हमें पता चले कि किस टाइप का फूड यहाँ पे है, किस टाइप का फूड पर्टिकुलर काइंड ऑफ यहाँ पे नहीं है। फिर सेम हमें वही प्लान बनाना पड़ेगा, फिर हमें ए प्लान भी बनाना और बी भी साथ में बना के रखना है। ए प्लान को फिर एग्जीक्यूट कैसे करना है, इवेलुएट कैसे करना है, कितने परसेंट हुई है, एंड अगेन अगर कम रह गई है हमारी वैल्यूएशन में, मीन ग्रोथ कम रह गई है, देन वी हैव टू थिंक अबाउट दैट एंड देन वी हैव टू वर्क अपॉन दैट। पहले कम रह गई, अगेन देन वर्क करना शुरू करो। हो सकता है पहले हमने ए प्लान पे काम किया है, जब उससे हमें 25-30% मिली है, बट नाउ द सिचुएशंस हैज चेंज्ड। सो अब हमारा क्या काम करेगा, सिचुएशंस कई बार चेंज हो जाती हैं, तो अब हमारा क्या काम करेगा कि हम हमें बी प्लान पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो ये वाली चीजों पे, ठीक है। सो नाउ यस, so now we have to talk about the factors influencing the community health and nutrition, because we have started discussing about the first problem, which is the community health and the nutrition. So हमने वो डिस्कस कर लिया। अब फैक्टर्स कौन से हैं, अब फैक्टर्स में हमारे पास आएंगे कि एक तो देखो कम्युनिटी हेल्थ है। अब हेल्थ क्या है कि कोई ना कोई बीमारी है या नहीं है, उसमें हमने बहुत सारे मेजर तो 4 ही हैं जो फैक्टर्स हमने देखने ही देखने हैं। सबसे पहले उस बीमारी का, उस हेल्थ रीजन का हमने क्या देखना है, जेनेटिक रीजन तो नहीं है, फिर हेल्थ सर्विसेज कैसी मिल रही हैं, फिर एनवायरनमेंट यहाँ का कैसा है, फिर पर्सनल हेल्थ बिहेवियर कैसा है। सो हमें इस तरह से उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होंगे तो जेनेटिक हो सकती है, सेक्स रिलेटेड हो सकते हैं, एजुकेशन हो सकती है, ऑक्यूपेशन रिलेटेड भी हो सकते हैं, एनवायरनमेंट से भी आ सकते हैं, सैनिटेशन से, पुअर पोल्यूशन से भी आ सकते हैं, पुअर सैनिटेशन से भी हो सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल भी नहीं है, ठीक है। फिर हमने देखनी है कि किस तरह की हेल्थ सर्विसेज हैं, तो उससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अवेलेबिलिटी किसके कितनी है, अच्छा उसको कितना यूटिलाइज भी किया जा रहा है, अगर उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई हेल्थ सर्विसेज हैं भी है, अगर इम्यूनाइजेशन सर्विसेज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे अब पोलियो के ड्रॉप्स हैं, पोलियो को बिल्कुल इरेडिकेट किया है सोसाइटी से, इसीलिए किया है कि वो कैसे होगा, कैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा था, तो उसके लिए भी तो इम्यूनाइजेशन शुरू की, ठीक है। वो इम्यूनाइजेशन अब बिल्कुल जो अनपढ़ लोग थे उन तक नहीं पहुंच रही है। सो पर्सनली बिहेवियर कैसा है पर्सन का, हाइजीनिक है, एक्सरसाइज करता है नहीं करता है, फूड अवेलेबल है कि नहीं है, डाइट कैसी है, इन सब चीजों को। सो जेनेटिक फैक्टर्स का तो हम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज जो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं उनके तो हमें कोई डिजीज होनी है तो हो ही जानी है, बिकॉज दैट वॉज यूर कैरिंग। अब सपोज कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है या डायबिटीज है, अगर आपको पता है कि हमारी फैमिली में डायबिटीज है, तो आपको पता है कि जो डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज है वो हमारी 30+ या 32-3 के आसपास जाके उसके ऑनसेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं, बिकॉज इफ यू हैव एब्डोमिनल एडिपोसिटी, आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल, आप मीठा खाने से हटते नहीं है, तो फिर वो जल्दी ऑनसेट हो जाएगा। बट इफ यू आर अवेयर ऑफ द जेनेटिक रीजंस, सो अगर आप अपने आप को बहुत करके रखते हो कि यस हम अपने आप को हमने बहुत हेल्दी रखा हुआ है, एब्डोमिनल एडिपोसिटी नहीं है, हम इस तरह से रहते हैं, ठीक है, तो तब क्या होगा कि आप ऐसे एनवायरनमेंट, क्योंकि जेनेटिक जो डिजीजेज होती है ना, बेसिकली वो जेनेटिक्स तो होती है उसका बेस, बट वो हमेशा एनवायरमेंटल फैक्टर्स के साथ ही होते हैं। डायबिटीज, कॉर्नरी आर्टरी, एनी अदर डिजीज विच यू कैन नेम इट, ओके। सो उसमें क्या होगा कि अगर आपके पास डिजीजेस की कोई हिस्ट्री है और आपको पता है कि इस जेनेटिक डिजीज के साथ फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐड होंगे, तो अब जैसे डायबिटीज है उसके साथ आपके, मैंने जो भी फिजिकल लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी बोली, सीडेंटरी लाइफस्टाइल बोला, ये सारी चीजें बोली, तो अगर वो वाली चीजें अगर साथ में होंगी तो ऑनसेट बहुत जल्दी हो जाएगा डायबिटीज का, ठीक है। अगर आप इन चीजों को अवॉइड करोगे तो शायद ऑनसेट बहुत लेट हो या फिर हो ही ना, इवन इफ यू आर कैरिंग द जीन्स ऑफ डायबिटिक कॉजिंग डायबिटिक, ओके। सो आपको एनवायरमेंटल फैक्टर्स का पूरा ख्याल रखना है अगर आपको डीएनए इसकी डिजीजेस पे काम करना है, ठीक है, एनवायरमेंटल।
पर्सनल एंड हेल्थी बिहेवियर भी होना चाहिए आपका। एडॉप्शन ऑफ द अनडिजायरेबल हेल्दी हैबिट्स नहीं होनी चाहिए, नशा, अल्कोहलिक, स्मोकिंग एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। रिजेक्शन ऑफ द हेल्थ केयर एंड नॉन कंप्लायंस, ऐसा है कि आपको जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एक तो हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं ले रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते हैं और इलाज भी नहीं करवा रहे हैं, तो उससे और भी आपकी नॉन कंप्लायंस को शो करता है कि यू आर नॉट टेकिंग, आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, और अगर रख भी रहे हैं तो मेडिसिन लेने भी चले गए तो प्रॉपरली ले नहीं रहे हैं और रेगुलर चेकअप के लिए नहीं जा रहे हैं। इनडायरेक्टली द क्रिएशन ऑफ द हाई रिस्क एनवायरनमेंट, और इनडायरेक्टली ये आप रिस्क पैदा करते हैं अपनी सोसाइटी में, कम्युनिटी में। अब क्या है कि स्पेसिफिकली डिटरमिन्ड फूड बिहेवियर, सबसे पहले बड़ी बात है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ फूड चाहिए तो उसकी अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए, तो एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आप, अवेलेबिलिटी तो है बट आप किसी ऐसे रिलीजन को बिलोंग करते हैं जिसमें वो फूड थोड़ा सा, कई बार, आई मीन आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम, but sometimes that food is rejected and all, but this should be eaten. So acceptability religious reasons के साथ और availability physically भी और socially and culturally भी, ठीक है। सो आपका इकोनॉमिक्स भी स्ट्रांग होना चाहिए, इकोनॉमिकली भी आप स्ट्रांग होने चाहिए हो, सो दैट कि जो भी आपने फूड लेना है वो आप उसको फोर्स भी, आई मीन अफोर्ड कर पाओ और एक्सपेंडिचर में इंक्लूड कर पाओ, ठीक है। ये सारी चीजें, सो अवेलेबिलिटी ऑफ दैट फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ दैट फूड सोशली एंड कल्चरली ऑल्सो, ठीक है। इन सब चीजों के साथ साथ इकोनॉमिकली भी आप उस फूड को अफोर्ड कर सकें, साइकोलॉजिकली जुड़ जाएं उसके साथ, उसको पर्सनली अदर वे राउंड ना लें, किसी भी तरह के फूड की मैं बात कर रही हूँ। सो ऑल दीज थिंग्स वुड बी एक्चुअली डन, ओके। So I'm just taking a few minutes break and then I'll be going to start with the next chapter. Just 2 minutes. So welcome back, and then we are going to go to the another block, okay, the second block and the fourth chapter of this, because three we have covered, okay. So this is actually a little bit understanding, okay. So if you can note down the points ना, आपकी उसमें book में कोई question आ गया health related है, different kind of health है, and you can actually explain in your words, okay. So it's not the thing that you cannot just explain. If you have a good level of the understanding of the things and you really wanted to relate with the community also, because this whole subject, it's actually dealing with the community, with lot of people, and you can actually ना relate with the कोविड। कोविड में आपको बहुत सारी चीजें का पता चला कि कोविड में कैसे लोग सोसाइटी कम्युनिटी में एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, ठीक है। बेडिंग्स एंड ऑल, कुछ रिलीजियस लेवल पे भी कर रहे थे, कुछ पर्सनल लेवल पे भी कर रहे थे, ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट लेवल पे भी हो रहा था, गवर्नमेंट ने बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की, ठीक है। सो कोविड से आपको पता चल गया कि दिस इज एक्चुअली द कम्युनिटी हेल्थ, ओके। और ऐसे कम्युनिटी में एक जगह से डिजीज शुरू होती है और सबको, अगर एक ही जगह पे वो कंट्रोल हो जाती तो शायद 2 साल से ज्यादा ये पूरा वर्ल्ड इतना सफर ना करता। सो दिस इज एक्चुअली द कम्युनिटी हेल्थ विच मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो कोविड एक इस DNHE3 का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिसको आप रिलेट कर करके अपने आंसर्स में हमेशा एग्जाम्पलरी वे में लेके, एग्जाम्पल दे के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज द थीम्स इन न्यूट्रिशन एजुकेशन। सो थीम्स में क्या है, स्ट्रक्चर में थीम 1 में हमारा आ जाता है, क्योंकि हमने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है ना, डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स एंड डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अब हमने किस तरह से लेना है, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड द लैक्टेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट वुड बी द थीम 1।
थीम 2 में क्या आएगा, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड द प्री स्कूल एज। एंड थीम 3 में क्या आएगा, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द स्कूल एज, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड द ओल्ड एज। इसमें सारे ही आ जाएंगे, मतलब स्कूल एज से लेके ना ओल्ड एज तक, एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड आल्सो। एंड नंबर 4 थीम जो है ना, वो आ जाएगी एज ए डाइट, एज ए थेरेपी। ये आ जाएगा क्लिनिकल में, ठीक है। तो अगर हम ये देखें कि न्यूट्रिशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में हमने क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि वल्नरेबिलिटी ऑफ द प्रेग्नेंट विमेन क्या है। उससे एक विमेन प्रेग्नेंट हुई है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स वल्नरेबल हैं, मतलब जो वीक पॉइंट्स हैं उसमें। और दूसरा, वेट गेन प्रेगनेंसी में कैसा हो रहा है या नहीं भी हो रहा, होना भी जरूरी है और बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। व्हाट टू ईट इन प्रेगनेंसी, various factors of the food intake, common problems affecting the nutritional status, monitoring the health during pregnancy, vulnerability of the lactating women, pregnant mothers at the risk, eat in the फिर lactating जब वो deliver भी हो जाता है baby, and after that also what she has to eat because she has to lactate to influence of the various factors on food intake in the lactation also। अच्छा, और फिर breast feed को सबसे best माना गया भाई, breastfeed successfully mother's dairy for how long she is giving, specific problems during the lactation and उसके solutions क्या हैं। अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन वल्नरेबल क्यों होती है, बिकॉज ना प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ स्ट्रेस कंडीशन। ओके, तो हमारी बॉडी में एक और बच्चा पल रहा होता है तो इट्स अ स्ट्रेस कंडीशन, क्योंकि ये लंबा स्पैन है 9 मंथ्स का। सो दैट इस टाइम में बेबी इनसाइड द बॉडी ग्रो करता है, प्रॉपरली ग्रो करता है, वॉर्म ऑफ द मदर, एंड द अनबॉर्न जो बच्चा है ना, चाइल्ड हेल्दी है, well nourished mother है, mother's tissue grow with the baby and all the nutrients which are needed by the unborn baby may be supplied by the mother। Okay, so this is also the stress of the think of the stress on her body। आप देखिए जिसमें ये बच्चा पल रहा है तो उसकी उसकी कितनी स्ट्रेस होती है, ठीक है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेट गेन इन द प्रेगनेंसी, ऑब्वियसली वेट होना भी चाहिए, एंड अगर बच्चे का वेट बढ़ रहा है और मदर का वेट भी नहीं है, दैट इज ऑल्सो एक्चुअली दी प्रॉब्लम, बिकॉज फिर बेबी, अगर मदर का वेट नहीं बढ़ रहा तो बेबी का भी नहीं बढ़ रहा होगा, तो फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स को लीड करता है, क्योंकि वो रीजन तो है ही ना कोई, शी इज हेल्दी, ईटिंग हेल्दी, तो बेबी भी ग्रो कर रहा है, तो फिर कैसे होगा, कैसे नहीं वेट गेन होगा। अगर फीमेल 11 kgs ड्यूरिंग गेन करती है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बेबी काउंट्स फॉर ओनली अ पार्ट ऑफ द वेट गेन। ऐसा नहीं है कि 11 किलो का बच्चा हो जाएगा, नो। सो उसका एक छोटा पार्ट ही बेबी का पार्ट होता है, बट मदर खुद भी एक्चुअली, क्योंकि मदर भी खा पी ज्यादा रही होती है ना ऑब्वियसली, सो उसमें क्या है कि उसकी बॉडी में ब्लड भी ऐड हुआ है, मसल भी ऐड हुए हैं, फ्लूइड भी ऐड हुए हैं, टिश्यूज भी ऐड हुए हैं, और कुछ जो कि बेबी की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, सो इसलिए मदर का अपना वेट भी बढ़ता है, ठीक है। अगर वो लेस देन 11 kg बढ़ती है तो फिर चांसेस फॉर द हेल्थ एंड द सर्वाइवल में गेट अफेक्टेड, किड के, इन्फेंट के, बच्चे के, फिटस के, ठीक है। तो मदर इज ओवरवेट है तो स्टिल गेन जो बच्चे का वेट होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, एंड उसको फिर लूज करने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट वुमेन गेन्स बॉडी वेट स्मूथली एंड स्टेडीली, ऐसे नहीं कि एक ही मोटी हो जाती है, स्लोली 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 स्लोली, फिर if her weight jumps suddenly, अगर बहुत ज्यादा वेट बढ़ रहा है, then also you should I mean the pregnant woman, that female should see a doctor immediately, ठीक है। आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या है, 1 to 2 kg बढ़ेगा, 6 सेमेस्टर में हाफ kg पर वीक बढ़ेगा, और टोटल 11 kg 7 मंथ्स में बढ़ जाना चाहिए। उसके बाद फिर अच्छा, प्रेगनेंसी में क्या खाना क्या नहीं खाना, सबसे पहले तो कैल्शियम रिसोर्सेज, हमें सब तरह का फूड खाना है, ईच फूड फ्रॉम ईच ग्रुप, ओके। सो मतलब कि हमें स्पेशली एनर्जी गिविंग फूड भी चाहिए, बॉडी बिल्डिंग भी चाहिए, एंड प्रोटेक्टिव फूड भी चाहिए, हर तरह का फूड, ठीक है। और फूड विच हैज अ गुड सोर्स ऑफ द आयरन ऑल्सो, और सबसे बड़ी बात है कि वो वाले फूड खाने हैं, और आयरन भी तब खाना है जैसे कॉन्स्टिपेशन हो जाए, इट शुड बी इजीली आई मीन डाइजेस्टेबल टू, ठीक है। And it's more important for you to identify the factors are specifically to your community and then talk about them in detail। आपको भी अपनी कम्युनिटी में जाके काम करना है और देखना है, और उसको काम बात करनी है उसके बारे में आके कि है क्या, कितना हो गया, हाउ कैन बी डील विद द कॉमन प्रॉब्लम्स इन द प्रेगनेंसी, ओके। मॉर्निंग सिकनेस है तो हमें लाइट मील खाना चाहिए, ग्लास ऑफ मिल्क एंड फ्रूट हमें जल्दी ले लेना चाहिए,
एंड समथिंग ड्राई लेना चाहिए, अवॉइड ग्रीसी फूड्स क्योंकि उसमें मॉर्निंग सिकनेस तो डेली रहेगी, हार्ट बर्न होता है उसके लिए, सकिंग हार्ड कैंडीज, ठीक है, अनेबल यूज टैबलेट जो है हमारी, मस्ट डू नॉट टेक अलोंग विद, एंड आयरन पिल भी लेनी है, एंड चेस्ट एंड हेड को लिफ्ट अप करके रखना है, फीडिंग स्मॉल डाउट, मतलब ऐसा नहीं है कि एक बार में खाना ज्यादा, मतलब अपनी मील्स को छोटे छोटे मील्स में डिवाइड करके ज्यादा बार खाइए। कॉन्स्टिपेशन होगी क्योंकि आपको प्लेंटी ऑफ वाटर्स पीने हैं, आयरन से बहुत कॉन्स्टिपेशन के चांसेस होते हैं। टेक लिक्विड्स बिफोर ईटिंग टू एंड इन द मॉर्निंग टू, एंड फ्रूट्स भी लेने हैं, फूड भी आप अनसीव्ड फ्लोर का खाना है, ठीक है, एक्सरसाइज करनी है, मोटा आटा पिसाना है और छान के उसका वो बुरा नहीं निकाल देना, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आते हैं। सो आयरन डेफिशिएंसी को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? ऑब्वियसली पहले तो आयरन रिच फूड खाएंगे, सिट्रस फ्रूट्स खाएंगे अलोंग विद आयरन, क्योंकि आयरन की अब्जॉर्प्शन में विटामिन सी का बहुत रोल होता है, ठीक है। सो अगर वुमेन एनीमिक है तो उसके पेल, लाइट पिंक और वाइट नहीं होंगे, मतलब लाइट पिंक होंगे, पेल होंगे या वाइट कलर के नेल्स होंगे, फेस एंड आई बॉल्स भी। सो ये सबसे पहले, और टायरनेस, एग्जॉस्ट बहुत जल्दी हो जाती है, थक जाएगी, ये एनीमिया की पहली निशानियां होती हैं। देन यू कैन गेट इट चेक योर हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑल्सो, ठीक है। सो और बहुत सारी चीजें हैं जो प्रेग्नेंट वीमेन के बारे में ख्याल रखनी पड़ेंगी, और लैक्टेशन में भी हमें हेल्दी फूड एंड ऑल देना है, मिल्क भी लेना है, खाना भी खाना है, ठीक है। और सबसे पहला ब्रेस्ट मिल्क भी बेबी को पिलाना है, विच इज कॉल्ड दी कोलेस्ट्रम, क्योंकि ये बहुत थिक एंड थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है, इसमें एंटीबॉडीज की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, और जितनी जल्दी हो सके बच्चे को वो पिलाना शुरू कर देना है, क्योंकि हम बच्चे को कोई और मेडिसिन या कुछ नहीं दे सकते हैं। सो इसमें क्या कि कोलेस्ट्रम से ही आता है, कई लोग इसको रिलीजियस और किसी रीजन से उसको ना ऐसे डिस्कार्ड करते हैं। सो इट शुड नॉट बी दी इट शुड नॉट बी दी थिंग्स विच कुड बी डन, इसको वेस्ट नहीं करना होता। और प्रेगनेंसी को भी अवॉइड करना होता है कि एक प्रेगनेंसी के बाद इमीडिएटली एंड लाइन वाइज प्रेगनेंसीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दिस हैपेंस इन इंडिया, क्योंकि बच्चों के बाद बहुत नंबर ऑफ किड्स एंड विदाउट द गैप ऑफ द किड्स है हमारा। सो उसमें क्या है कि हमें इस चीज को देख के चलना है कि नहीं, मदर है ऑलरेडी, कितने बच्चे, एक तो लिमिटेड होने चाहिए, 2 से ज्यादा ना हो, और ऊपर से अगर हैं भी तो 3 हो भी गए हैं तो एटलीस्ट दैट शुड बी विद द गैप, ओके। सो ये सारी चीजें आपको ख्याल रखनी है। अब न्यूट्रिशन जो हमारा प्री स्कूलर्स के साथ है, सप्लीमेंट्री फूड देना शुरू करना पड़ेगा इनको, हमें थोड़ा बहुत मिल्क भी देना है, ठीक है, एंड सप्लीमेंट्री फीडिंग हमें कर देनी पड़ेगी शुरू। सप्लीमेंट्स में लिक्विड, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड फूड भी हो सकता है, ठीक है। समटाइम्स जो कम्युनिटीज है ना वो इतना प्रोवाइड नहीं कर पाती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें कब शुरू कर देना चाहिए, जितनी भी जल्दी बर्थ होता है, जितनी जल्दी बच्चे को मदर्स मिल्क पे डालने उतना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि मदर जो बेबी है वो ईट तो कर नहीं सकता, स्वेलो भी नहीं कर सकता था, लेकिन सक करेगा ही लिक्विड को, मदर्स मिल्क को। और जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतनी इजी है, जल्दी है। न्यूट्रिएंट्स, आयरन वगैरह भी बहुत देने चाहिए, क्योंकि नहीं तो दिक्कत आएगी, ठीक है। एग्जॉस्टेड रहता है बंदा, फटीग्ड रहता है बंदा, हमेशा थका थका सा रहता है, ठीक है। अब बेबीज क्योंकि वो डेवलपिंग स्टेज पे हैं, उनको एनर्जी, प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड ब्रेस्ट मिल्क बिल्कुल सफिशिएंट अमाउंट में मिलना चाहिए, ठीक है। 4th मंथ के बाद उसकी ब्रेस्ट मिल्क हटती है तो हट जाए, बच्चे छोड़ते नहीं है वैसे, ठीक है। बट 7 मंथ्स के बाद ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट नहीं होता, फिर उसके बाद उस बच्चे को और भी चीजें हमें देनी है, जैसे इजी टू डाइजेस्ट वाली इडली, पोंगल, खिचड़ी वगैरह, या प्योर एंड ग्रीन वेजिटेबल्स का भी है, जैसे होम्स फूड, कुक्ड फ्रूट्स एंड ऑल, ठीक है। एंड एक्सपेंसिव एंड इजी टू प्रिपेयर वाले फूड्स देने चाहिए, बहुत ज्यादा महंगा नहीं, क्योंकि सिंपल तरीके से आप बनाएंगे, सिंपल तरीके से उसको देंगे, विदाउट द स्पाइस, एडिशन ऑफ द स्पाइसेस, चिलीज एंड अदर थिंग्स आल्सो। वैरायटी ऑफ फूड्स दीजिए, सॉफ्ट फूड दीजिए, सेमी सॉलिड फूड खिलाइए, बट ऐसा फूड नहीं कि जो काम ही ना करे और न्यूट्रिशन प्रोवाइड ना करे और बच्चा खा ना सके, सबसे बड़ी बात, ठीक है। 4 to 6 मंथ्स में आपको ब्रेस्ट फीड भी देनी है, सीरियल बेस्ड पॉरिज, रागी राइस पॉरिज एंड सीरियल पल्सेस कॉम्बिनेशन के साथ, एंड फ्रूट जूसेस एंड वेजिटेबल सूप्स, ठीक है। और आपको थोड़ा थोड़ा फूड देना होता है, पहले अर्ली मॉर्निंग में आप ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में फ्रेश जूस या मैश्ड फ्रूट्स दे सकते हैं, मिड मॉर्निंग में पॉरिज दे सकते हैं, लंच में फिर से ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं,
और इवनिंग में पॉरेज दे सकते हैं, फिर बेड टाइम पे फिर से ब्रेस्ट मिल्क होता है। अगर 7 to 12 मंथ्स है उसको भी ब्रेस्ट फीड देनी पड़ेगी, पॉरेज वगैरह दे सकते हैं हम, ठीक है। और इडली पोंगल सॉफ्ट चपातीज के साथ सेम फूड एज द रेस्ट ऑफ द फैमिली अगर खाती है तो वो सेम ही फूड उसको दिया जा सकता है, ठीक है। अब हमारे पास टू फूड कॉम्बिनेशन जैसे राइस दाल, ब्रेड एग, राइस फिश, चपाती बीन्स, राइस रागी चिकन, राइस दाल ग्रीन्स, राइस कैबेज एंड कैरेट्स एंड राइस रागी एंड पीज, ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हैं जिसमें से हम चूज कर सकते हैं हमेशा, ठीक है। और मील को डिवाइड करके हम ज्यादा मील्स में वो कर सकते हैं। सो हाउ कैन बी मॉनिटर द ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड, सबसे पहले हमें वो एक चार्ट बनाना पड़ेगा और उस पे हमें वेट एंड हाइट के हिसाब से नोट करना पड़ेगा। और अगर डेफिशिएंसी होती है तो हमारे पास कौन सी डिजीजेस होने के चांसेस, अगर तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो मैरिस्मस एंड क्वाशियोरकर, आयरन डेफिशिएंसी है तो एनीमिया, ए डेफिशिएंसी है विटामिन ए तो जीरोपथैल्मिया। और प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन में क्या है कि ये बिल्कुल ही फर्स्ट साइन है कि ये ग्रोथ नहीं होगी, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ेगी, ठीक है। एंड बच्चा छोटा छोटा पतला पतला होता जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपको हेल्थ वर्कर्स के पास आंगनवाड़ी में सबसे पहले जाके वहां से जो फूड मिलता है वो भी आप ले सकते हो, सो दैट द प्रोटीन सप्लाई शुड बी मिनिमम एंड देन एटलीस्ट दे शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, एंड उसके बाद वो उसके ऊपर आएगा फिर, ठीक है, दिखना शुरू हो जाएगा कि वेट में इम्प्रूवमेंट है, स्किन में इम्प्रूवमेंट है और बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट है, ठीक है, इन सब में। तो क्वाशियोरकर के जो हमारे सिम्टम्स होते हैं वो क्या है, स्टॉप ग्रोइंग, बॉडी स्वेलिंग और डीमा हो जाता है, एंड मून फेस हो जाता है, थिन अपर आर्म हो जाती है, सॉफ्ट फ्लैबी मसल्स हो जाते हैं, क्रैक्ड एंड पीलिंग स्किन हो जाती है, थिन एंड रेडिश हेयर हो जाते हैं, अनहैप्पी विद पीविश एंड मे नॉट वांट टू ईट, भूख मर जाती है ऐसे बच्चों में, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी। और अगर आपको एनीमिया का पता करना है, एनीमिया में क्या होगा, पेल एंड ट्रांसपेरेंट स्किन होगी, वो लेस एक्टिव होगा, फटीग्ड रहेगा बच्चा, ज्यादा इन्फेक्शन होगी क्योंकि वो अंदर से इम्यूनिटी नहीं है उसकी, लिप्स एंड गम्स और आईलिड्स जो हैं वो लाइट पिंक और पिंकिश व्हाइटिश हो जाएंगे रादर देन ब्राइट पिंक, शाइनी स्मूथ टंग होनी चाहिए, एवर लुक एंड पेल डल नहीं होनी चाहिए क्योंकि एनीमिया में ऐसा होगा, ठीक है। इसी से गुड इंडिकेटर होता है कि आईज को ऐसे देख के और टंग को बाहर निकलवा के डॉक्टर देख लेते हैं, इफ इट इज अ बिगिनिंग ऑल्सो देन ऑल्सो आप कह सकते हैं कि इसको है एनीमिया। सबोलन फेस एंड फीट हो जाएगा, रैपिड हार्ट बीट हो जाएगी, फील लाइक ईटिंग मड डर्ट या चौक, ये लोग एनीमिक जो होते हैं इनमें इनकी टेंडेंसी, इनकी क्रेविंग बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस बहुत जल्दी चढ़ता है क्योंकि स्टेमिना नहीं है, इनएडिक्वेट ऑफ द आयरन रिच फूड, ये इन्होंने इसका मतलब इनको आयरन सप्लाई करने वाले फूड इन्होंने खाए ही नहीं है, ये ऐसा फूड खाते थे जिसमें आयरन रिच नहीं था। मिटर्नल मेल न्यूट्रिशन इज ऑल्सो, क्योंकि मदर खुद अनिमिक थी जिसमें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो, तो बच्चे के होने के चांस है। प्रीमेच्योर बर्थ भी हो जाएगा, दोज प्रीमेच्योर जो बच्चे होते हैं ना, बर्थ होता है जिनका, वो भी एनीमिक होते हैं, ठीक है। तो उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। वर्म इन्फेस्टेशंस का मतलब है कि अगर हम इनसाइड द बॉडी थ्रू वर्म सच एज दी हुक वर्म और टेप वर्म है, वो सारा फूड खा जाते हैं, मतलब उन वो एक तरह के क्या कहते हैं, पैरासाइट्स काइंड ऑफ हैं, जो आपका फूड है वो उनके पास चला जाता है तो आप एनीमिक बन जाते हो, ठीक है। सो चाइल्ड हु आर बॉर्न टू अर्ली ये एनीमिक होते हैं, और बॉर्न एनीमिक मदर्स अगर हैं तो बच्चा भी एनीमिक हो जाएगा। और काफी ना एक लिमिटेड पैटर्न्स होते हैं कि आपको कितनी देर ब्रेस्ट मिल्क करनी है और फिर अलोंग विद ब्रेस्ट मिल्क और कब कब क्या क्या देना शुरू करना है, 2-3 महीने बाद आपको चेंज करने पड़ते हैं सारे पैटर्न्स, ठीक है। लेकिन ऐसे बच्चे भी एनीमिक होते हैं जिनको बहुत देर तक दूध पे ही होते हैं, इन्फेस्टेड विद द पैरासाइट सच एज द हुक वर्म एंड द टेप वर्म ऑल्सो, जिनके पेट में होते हैं। सो नॉट ईटिंग द मिक्स्ड डाइट्स सच एज द आयरन रिच फूड, एक ही तरह का फूड खाते रहते हैं, एक ही तरह का फूड, ठीक है। तो different different changes, different different सब्जियां, different different kind of salads and every kind of a seasonal fruits and all, supplementation also, एडवांस न्यूट्रिशन विंटर्स में कुछ, सो इन चीजों का बड़ा इम्पैक्ट होता है, पर एक ही तरह का फूड खाते रहते हैं, सो दे स्टार्ट सफरिंग विद वन काइंड ऑफ द डिजीज ऑल्सो।
अगर आयरन की बात हो रही है तो गिव plenty of iron rich foods, iron tonic though, iron tonic after the meal and it doesn't upset the child. Okay, all these things. So I have just finished mostly the four chapters. So you can go through that. So I don't think so that I can actually teach more than that now. Also, I should not. So we'll be continuing tomorrow. आज मैं थोड़ी सी जल्दी क्लास फिनिश कर रही हूँ because I have taken the four chapters and it's been too long. Okay, so tomorrow we'll spend more time and then we can have also. Okay. सो लिटिल बिट अर्ली कर रही हूँ मैं, थोड़ी सी 15-20 मिनट और ले सकती थी मैं क्लास, बट आई कैन एक्चुअली फिनिश. ओके, so if you are prepared with the questions and kindly go through the DNHE 3, and I have finished almost the yes 4 chapters unit 3K unit I mean DNHE 3K. I have finished the 4 chapters. Okay, so I'm here to take your questions. If you have any questions, then you can actually let me know. मैडम, हाँ जी. असाइनमेंट लिखना शुरू किया है तो पहले और दूसरे असाइनमेंट में एक दो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, तो अभी पूछना है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो बाद में पूछना है? नहीं, असाइनमेंट्स आप कर रहे हैं तो आपके पास बुक्स की हेल्प तो है ना. तो इफ यू स्टार्टेड वर्किंग विद द बुक्स आल्सो तो आप बुक्स के हेल्प लेके कीजिए, अदरवाइज मुझसे पूछिए. ओके, अभी पूछ सकते हैं, अगर आप बिजी है तो फिर कल बात करते हैं. नहीं नहीं, क्वेश्चंस के लिए तो मैंने टाइम दिया है. अच्छा, ओके. मैंने जस्ट टॉपिक्स बंद किए बिकॉज आई हैव कवर्ड ना एट ए स्ट्रेच 4 चैप्टर्स. और आप, मैं तो करवाती जाऊंगी बट आपके लिए दिक्कत आ जाएगी ना. एट ए टाइम मैंने 4 करा दिए और कल को फिर और 4 करवा दूंगी तो 8-9 हो सकता है, ज्यादा भी करा दूं 5. सो आपकी कंफ्यूज, मैं तो अगला चैप्टर भी ले लूंगी बट इट विल बी एक्चुअली कंफ्यूजिंग, है ना, हो जाएगा. क्योंकि एट ए स्ट्रेच 4-5 चैप्टर. सो आपको 4 मैंने खत्म किए हैं एट स्ट्रेच. So I don't want to burden yourself. Okay, so that's why it's not me कि मैं जल्दी क्लास कर रही हूँ, इसलिए ओके. कि मैंने 4 चैप्टर्स करा दिए so that I should be open with the क्वेश्चन राउंड, सो तो मैं और ना करवाऊं. बिकॉज एक ही बार में मैं तो बोली जा रही हूँ, करवाई जा रही हूँ, उसका फायदा नहीं है ना. देयर इज नो यूज टू टीच यू. ऐसे एकदम से आपके दिमाग में कैसे डलेगा. एटलीस्ट यू शुड, 4 चैप्टर्स हो गए, अब आपको रिवाइज करने हैं. So you can ask questions tomorrow, or I can take questions from this chapters जो मैंने अभी teach किए है ना. You can go through, आप आराम से इनको एक बार देखिए. Prepare the question on your page. Whenever we'll on the class tomorrow ना, तो then you can ask the questions. I can answer. Okay. मैडम, हाँ जी. हमने डीएनएच पार्ट 2 मतलब जो दूसरा है असाइनमेंट, उसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित खाद्य जनित रोगों में से किन्हीं दो के लक्षण, कारण और रोकथाम बताइए. उसमें एक है संक्रामक यकृत शोथ. वो क्या होता है? संक्रामक का देखो, आई एम नॉट मैं हिंदी मीडियम में नहीं हूँ बट समटाइम्स आई कैन लेट यू नो. संक्रामक का मतलब होता है कंटेमिनेशन होती है, जैसे एक दूसरे से फैलती है, जैसे कोविड था. ठीक है, और आगे वर्ड क्या बोला आपने? यकृत शोथ. शोध का मतलब तो इन्वेस्टिगेशन हो गई है. एक है संक्रामक हैजा, मतलब, दूसरा एक है हैजा, वो मैंने लिखा. पैचिस, हाँ वो भी मैंने देखो, लिखा. वही 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 और वही वही तीसरा इसके है पॉजिटिव एजेंट आपको बताने. पॉजिटिव एजेंट्स हैजा है, हैजा होता है कॉलरा. कॉलरा का पॉजिटिव एजेंट्स माइकोबैक्टीरियम कॉलरेई. ठीक है, ओके. जो इसका माइक्रोबैक्टीरियम होता है. इन सब के क्या बताने हैं आपको? पॉजिटिव एजेंट्स बताने हैं. किससे होता है कॉलरा? किससे होता है हैजा? हिंदी में बोलते हैं क्या होता है, किससे होता है, कौन करता है. ठीक है, जितनी भी निम्नलिखित होंगी मतलब फॉलोइंग होंगी ना, जितनी डिजीजेज हैं उनके आके आपको कौन सी डिजीज है, जैसे हैजा है वो किससे होता है, कोविड आ गया वो किससे होता है, ठीक है, मलेरिया है वो किससे होता है. शायद ऐसी ऐसी चीजें हो तो आपको पॉजिटिव एजेंट्स के नेम्स लिखने हैं जस्ट वहां. पर ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये यकृत शोथ मतलब क्या होता है. इसका मुझे इंग्लिश में क्या हिंदी बताएगा नहीं, पता. आई मीन मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू जो मुझे समझ आया है. बट लीवर लीवर यकृत એટલે मैम. ओके. ओके, लीवर. लीवर. ओके. ओके ओके, थैंक द यू. लिवर. ओके, आई एक्चुअली डोंट नो. मैं हिंदी थैंक का यू. इतने वाले फास्ट नहीं है. इंग्लिश में अगर आप मुझे बता दें तो आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू.
आप इनके प्लीज गूगल पे जाके या कैसे ट्रांसलेट करके ना मीनिंग ढूंढिए, फिर मैं आपको बता पाऊंगी। अदरवाइज आई कैन ऑल्सो, मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक्स भी नहीं है, आई एम जस्ट टीचिंग यू फ्रॉम दी इंग्लिश मीडियम ऑल्सो, एंड मेरे पास हिंदी नहीं है, आई एम सो सॉरी। अदरवाइज आप मुझे लिख के अभी भेजिए, हो मैं जाएगा मैडम। ट्रांसलेट करके, नहीं आप मेरे को व्हाट्सएप पे इसके वर्ड्स या वो लिख के भेजिए, सो दैट आई कैन गिव इट द ट्रांसलेशन एंड देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट टू यू। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है आपकी प्रॉब्लम्स लेने में, मैंने अपनी प्रॉब्लम अभी आपको बताई है कि ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वाली सही है। हिंदी है। मुझे इंग्लिश का आ जाएगा तो मैं इमीडिएटली, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की वो बात अलग नहीं मैं कह रही हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में आप पढ़ सकते हैं, पर मैंने इंग्लिश में पढ़ा है तो मैं इन वर्ड्स से फेमिलियर नहीं हूँ। ठीक है, सही है। इट्स नॉट द मैटर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, it's the matter that I have read in English, so I know the English words. ये जो हिंदी के वर्ड आप बोल रहे हैं, I don't know their English. I have to look for their English, only then I can actually explain. I have to take the little bit of time just for the translation. या फिर आप मुझे लिख के भेजिए, I can get it translated and then I'll be explaining it to you. ठीक है? Okay. Yeah. थैंक यू सो मच। इफ यू डोंट हैव द क्वेश्चन, पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप प्लीज जो भी चैप्टर्स हुए हैं, बिकॉज आज हमने DNHE 3 वी हैव स्टार्टेड, सो just go through those chapters and then come with the questions tomorrow. I'll take your questions first. ये नहीं कि पढ़ा के I take the questions. Tomorrow I'll take the questions okay, from these very chapters. You can ask अगर नहीं है, please आप इसको देखिए, gather the questions, note down the questions on the books only, on the pages only. Then I'll be taking before the questions and then I'll be further. Okay. Tomorrow I'll take the first questions first. So kindly, okay. So here I'm just closing the class and then yes, ये विद्या साहू जी, are you calling और क्या दिक्कत है आपकी? आप कोई क्वेश्चंस पूछना है, बिकॉज यहाँ पे कोई कॉल जैसा साउंड आ रहा है। ठीक है, सो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू एवरीवन। जस्ट टुमारो आई विल टेक योर क्वेश्चंस बिफोर। हाँ जी मनीष जी, हाँ जी कोई नो प्रॉब्लम, आप पूछिए क्वेश्चन। मैम गुड इवनिंग। मैम एक व्हाट्सएप ग्रुप आप उसमें जिक्र कर रही थी पिछले संडे को कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ अपना, तो इसमें हम लोग हाँ जी भी प्लीज, हाँ जी ये जो मैसेज बॉक्स है, प्लीज जिसने भी, इट्स नॉट मी जिसने बनाया, ये इस ग्रुप के ही जो मेंबर्स हैं ना, उनमें से ही किसी ने बनाया है, तो प्लीज वो इसमें एक इनविटेशन लिंक है उस ग्रुप का, तो प्लीज इस मैसेज बॉक्स में डालिए, सो दैट मनीष जी कुड आल्सो ज्वाइन, मनीष जी भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर जाएं। प्लीज एनीबडी जिसने भी बनाया है, प्लीज वो कीजिए, अदरवाइज आई कैन आल्सो सी अगर। मैम हाँ जी ICDS मतलब वो आंगनवाड़ी का, वो समझ में आ गया, मतलब हाँ जी आंगनवाड़ी वाला, वो ही ना, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला। हाँ जी ओके, थैंक यू। प्लीज ये हाँ इनवाइट कॉपी लिंक and then I can send it to you here, I think. ये सर ये लिंक मैंने डाला है और आप इसके थ्रू ज्वाइन कीजिए प्लीज, इफ यू कैन ज्वाइन। ठीक मैम, मैं ज्वाइन कर लूंगा इसको, मैंने नंबर भी अपना शेयर कर दिया, कोई बात नहीं, मैं बाकी ज्वाइन कर लूंगा इसको। हाँ, आई कैन सेव योर नंबर टू, अगर नहीं भी होगा देन आई कैन एक्चुअली सेंड इट टू यू, तो आप आ जाए। ये मैंने नहीं बनाया है एक्चुअली, ये ग्रुप में सब अपलोड, मतलब just wait, 99270 71231। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। विल मीट टुमारो प्लीज काइंडली। मैं बहुत जल्दी भी करती हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता है कि मैं समझा पाती हूँ नहीं। इफ यू डोंट कम विद द क्वेश्चंस, काइंडली गो थ्रू द क्वेश्चन, इफ इट्स you don't require to ask any question then it's okay, क्योंकि इतना difficult भी नहीं है, अगर छोटे मोटे questions है, tomorrow I'll take the questions first, after that I'll start teaching the next chapters. Okay, thank you so much for attending the class, and have a safe, and keep Thank you, ma'am. asking the questions. Thank you so much, thank you.